Uh, Namaskar and very good morning to all of you. Welcome to SSIP Gujarat Arts and Science College, Ahmedabad. Myself, Dr. Chaitanya Jha, with our coordinator professors, Professor Mrs. Modi and Professor Mitesh Patel, welcome you all the attendees, faculties, students. Today, we are with the subsequent fourth lecture of SSIP Gujarat Arts and Science College, that is Idea to Venture. And we are having very famous and renowned speaker today with Dr. Brajesh B. Parikh sir. Doctor, I'm giving a very short and very, you can say, uh, he's a famous orator. He's a founder of Voice of the Earth. He's environmentalist. He's enterprise design thinking practitioner. He's entrepreneurship trainer. He's mentor of the change stream. He's counselor. He's chemistry faculty. So today, dear friends, we are having a very good faculty member to deliver the talk on Idea to Venture. Dr. Parikh is having their PhD in supramolecular chemistry, and he has having 12 awards from international, national, and state organization. More than 10 guest lectures delivered at various institute, colleges, organization on different topics like environment, sustainability, entrepreneurship, parenting, motivation, and career planning. He's associated with 7 international organizations, 7 national organizations, and 5 state organizations. He was also a principal of Navkar Public School and vice principal of Anand Niketan Seeders campus. He is bridging the gap between industries and academics through projects, consultant for industrial environment research. He has already published 3 international papers and 2 books. He's passionate, also passionate chemistry faculty. Dear friends, our faculty, our speaker, Dr. Parikh, having membership and social, he is also having social activities in different areas, like he is ambassador of 100.org, luminary leader of Harvard Extension Student Environment Club, Boston, USA. He's also vice president of the Association of Chemical Technologists. He's also a member of the Gujarat Science Academy, member of the American Chemical Society. He's also the member of Society of Materials Chemistry, BARC Mumbai, and lots more. He's a very good orator. He's a good speaker. He will deliver a very good lecture on the SSIP that is called Startup Idea to Venture. I welcome Dr. Brajesh sir. Sir, please. Thank you. Your turn. Welcome, sir. Thank you, Gujarat Arts and Science College, as well as Ascentech, for inviting me for this talk. The title is Journey of Startup Innovation to Entrepreneurship. So I thought, okay, let me take something special. So that's why I decided my title, Idea to Venture. Right. In 2014, I visited to USA. That time we have done this project, I2V. So the full form is Idea to Venture. So I thought, let me put the today's talk on the same topic. So thank you for giving my introduction. Right. So anyone can talk with me at any time for anything if they want. So let me start the talk. So what is learning outcome from today's talk? I will speak in Gujarati, Hindi and English, all 3 languages. Right. So I have covered few topics in today's talk. First, we will discuss about creativity, जिसको हम कहते हैं रचनात्मकता, right? Then we will discuss about what is innovation. Then we will discuss about enterprise. Then for this idea to venture, how idea can be generated. So, right. So we will discuss on generation of idea. Then we will talk about design thinking process. Right now, many people are working on this. So it's a very important task, design thinking process. After then, we will talk about the success factors in startups and the motivation and skills that are required to run your own business. So here we will start our business plan. Then how to start thinking about your business idea and to decide whether it is a practical proposition or not. We will discuss that. Then the information that goes into a good business plan. We will discuss that.
And at last, I will share my experience and I will give some key messages to take on the board, right? So let's start. I hope you will understand what I want to give to you. And if any question or queries, you can post your comments. So first of all, look at this picture. It says what's on your mind, right? So I have given two titles, the think tank as well as output is dependent on the input. मतलब हम जो इनपुट दे रहे हैं उसी से हमें आउटपुट मिलेगा. तो हमारे माइंड में है क्या क्या? तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम हियर. डिटर्मिनेशन, डेवलपमेंट, इंटीग्रिटी, एडवांसमेंट, विजन, इनोवेशन, पोटेंशियल, अपॉर्चुनिटीज, क्रिएटिविटी, स्किल्स एंड एम्बिशन. ईश्वर ने हमें एज ए ह्यूमन बनाया है और सबको सेम टाइप का ब्रेन दिया है और उसमें ये सारी क्वालिटी दी है. उसमें से हम उसको किस तरह से यूज कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आज के टॉपिक में हम इसमें से ही कुछ चीजें उठा के हम समझेंगे कि हम आइडिया को कैसे वेंचर में कन्वर्ट कर सकते हैं. या तो अगर हमारे पास एंटरप्रेन्योर स्किल है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो कैसे डेवलप करना है वो भी हम जान पाएंगे, राइट? तो इसके लिए मैं एक आस्क करके एक मैंने कॉन्सेप्ट बनाया है जिसका नाम है एटीट्यूड, स्किल एंड नॉलेज. हम सबको बताया भगवत गीता में कृष्ण भगवान ने इस तीनों चीज की बात की है. एटीट्यूड मतलब भक्ति, स्किल मतलब कर्म एंड नॉलेज मतलब ज्ञान. तो आप अगर सारे 18 अध्याय देखे गीता जी के, उसमें ये तीनों के बारे में होता है. कर्म योग होता है, ज्ञान योग एंड भक्ति योग. अगर जो भी इंसान इस तीनों को फोकस करके काम करेगा उसको लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकता. तो उसको भी अगर हम डिफाइन करें तो वी आर हैविंग फ्यू वर्ड्स लाइक व्हाट इज इंफॉर्मेशन. तो जब डेटा ऑर्गेनाइज्ड होता है और हम उसको गेन करते हैं, जैसे अभी आराम से हम गूगल पे सर्च करते हैं या विकिपीडिया पे सर्च करते हैं, तो वो क्या है? दैट इज इंफॉर्मेशन. जब ये इंफॉर्मेशन हम डाइजेस्ट करते हैं और एसिमुलेट करते हैं अपने हिसाब से, तो वो नॉलेज बन जाता है क्योंकि हम वो किसी को शेयर कर सकते हैं, राइट? फिर नेक्स्ट वर्ड है प्रोफिशिएंसी. तो सारा नॉलेज इकट्ठा हो गया, जैसे आज मैं भी आपसे डिस्कशन कर रहा हूं, तो प्रोफिशिएंसी होगी तभी मैं कर पाऊंगा, राइट? सो दैट इज व्हाट नथिंग बट गैदर्ड नॉलेज. फिर मैं बहुत बार लेक्चर लूंगा तो एफिशिएंसी आ जाएगी. सो व्हाट इज दैट? इंप्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज इनटू एक्शंस. उससे क्या क्रिएट होगा? विजडम क्रिएट होगी. व्हाट इज विजडम? अप्लाइड नॉलेज इन अप्रोप्रिएट फील्ड. एंड देन लास्ट एक्सप्रेशन विल कम. एक्सप्रेशन इज नथिंग बट सम ऑफ एफिशिएंसी एंड प्रोफिशिएंसी. तो अगर आप कोई भी फील्ड में वर्क करना चाहते हो, वेदर यू आर गोइंग टू क्रिएट अ बिजनेस और यू आर गोइंग गो फॉर जॉब, ये तीन फैक्टर आपको याद रखने हैं, एटीट्यूड, स्किल एंड नॉलेज. और इसको अगर आप फॉलो करोगे तो मैंने जैसे आगे बताया, you will not have any problem in anything, right? Now मैंने wisdom को थोड़ा ज्यादा elaborate किया है क्योंकि it is connecting with few things. तो information कौन सी? तो information is what you do with what you have. देखो कोरोना का टाइम चल रहा है अभी, तो कोरोना के टाइम में हम अपने पास जो भी है उसी से काम चला ले, राइट? तो उसी को हम यहाँ पे क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन, माहिती, राइट? अच्छा, उसके लिए हम क्या क्या यूज करेंगे? अगेन मैंने आस्क से कनेक्ट किया है. तो इंसान के पास 3 क्यूज होते हैं. एक होता है IQ, एक होता है EQ और एक होता है SQ. IQ सबको पता है ऑलमोस्ट. व्हाट इज दैट? इंटेलिजेंट कोशिएंट. व्हाट इज EQ? दैट इज इमोशनल कोशिएंट. अभी अभी लोग जान पाए क्योंकि अभी आजकल रिलेशंस में प्रॉब्लम्स आए तो EQ को भी बाहर दे रहे. और सबसे ऊपर होता है स्पिरिचुअल कोशिएंट, SQ, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है. जो लोग अभी मेडिटेशन कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, उनको बताया कि हाँ स्पिरिचुअल वैल्यूज क्या है. तो अगर आप ये तीनों का बैलेंस करके कोलैबोरेशन करोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट अ गुड विजडम, राइट? और क्या होता है विजडम में? तो आप कोई चेंज है उसको किस तरह से देख रहे हो. व्हेन यू चेंज द वे यू लुक एट थिंग्स, आप किस चीज को कैसे देख रहे हो, पॉजिटिव, नेगेटिव, तो वो भी विजडम का ही पार्ट है. और सबसे इंपॉर्टेंट है नोइंग इनफ इज इनफ इज वेल्थ ऑफ स्पिरिट. मतलब ऐसा नहीं है कि हमें ग्रीडी बन के बस चाहिए ही चाहिए, अनलिमिटेड हम गलत काम करें, वो सब नहीं करना है. हमें ये जानना है कि जो हमें बता है उतना इनफ है. हाँ, अगर और इंफॉर्मेशन मिल सकती है और ज्ञान मिल सकता है तो गेन करो आप, राइट? सो दैट्स व्हाई नोइंग इनफ इज वेल्थ ऑफ स्पिरिट. सो
हाउ कैन वी बिकम स्मार्ट? तो स्मार्ट का एक बाइफर्केशन किया हुआ है. अगर आपके पास ब्रेन अच्छा है, उसमें आप ये सारा इंफॉर्मेशन से लेके विजडम तक जा सकते हो, तो आप स्मार्ट बन ही सकते हो. तो स्मार्ट को हम कैसे इलोबरेट करेंगे? तो स्मार्ट मतलब एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अटेनेबल, आर फॉर रिजल्ट ओरिएंटेड एंड टी फॉर टाइम बाउंड. अगर ये 5 चीजें आप फॉलो कर रहे हो तो आप स्मार्ट हो ही. आप देखो, आप अगर स्टडीज में भी देखो तो आपको स्पेसिफिक टॉपिक देखना होता है, उसमें टीचर क्वेश्चन पूछता है तो उसमें मेजरेबल बनाना होता है, अटेंड करना होता है. अच्छा, और वो आंसर रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए और एक टाइम बाउंड है. तो स्टूडेंट से लेके एक बिजनेसमैन तक स्मार्ट का डेफिनेशन बहुत इजी है. तो यू नीड टू फॉलो दिस. नाउ बिफोर गोइंग टू क्रिएटिविटी, लेट मी डिस्कस वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. वैसे हम कहते हैं हम बहुत क्रिएटिव है, हम बहुत क्रिएटिव है, लेकिन अगर आप इंसान की क्रिएटिविटी देखोगे तो वो और कुछ नहीं है, नेचर की कॉपी है. उसके काफी एग्जांपल मैंने यहाँ पे रखे हैं. तो रियली हम क्रिएटिव है कि गॉड ने गिफ्ट दिया, हम उसी को यूज कर रहे हैं. तो लेट अस कंपेयर फ्यू नेचर क्रिएशंस विथ ह्यूमन क्रिएशन. अगर देखो, नेचर ने वेनम्स या पॉइजन बनाया है, तो ह्यूमन ने क्या किया है? एनेस्थेटिक्स बनाया है. अगर नेचर ने लीफ बनाया है तो ह्यूमन ने सोलर पैनल बनाया है. दोनों काम क्या करता है? सोलर एनर्जी को यूज करने का. अगर नेचर ने ब्रेन दिया है, हमने कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाई है. नेचर ने डीएनए बनाया है, हमने कंप्यूटर प्रोग्राम्स बनाए. नेचर हैज गिवन अस द ईयर ड्रम, हमने माइक्रोफोन बना लिए. आईज दी है, हमने कैमरा, लेंस, फोकस, आइरिस, फिल्म सब बना लिया. आई लीड नेचर ने हमें गिफ्ट में दी है, हमने क्या बना दिया? विंडशील्ड, वाइपर. देन इफ यू आर हैविंग इंसिसर टीथ व्हिच वी हैव क्रिएटेड इन अ फॉर्म ऑफ नाइफ. हार्ट दिया है ईश्वर ने हमें, हमने उसको पंप में कन्वर्ट कर दिया. स्पाइनल कॉर्ड, नर्वस सिस्टम, हमने उसको क्या कर दिया? अभी टेलीफोनिक जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो बना लिया. नेचर ने बर्ड्स दिया जो बहुत अच्छा म्यूजिक देते हैं, हमने म्यूजिक कंपोज किया. तो अगर हम देखा जाए तो जितनी भी चीजें बन रही है वो और कुछ नहीं बट एक नेचर का कॉपी है. जनरली हम ऐसा ही करते हैं ना कि कॉपी पेस्ट करने में ही माहिर है. तो वेदर वी आर रियली क्रिएटिव और नॉट, एक क्वेश्चन देखना है हमें. Right? It may be right, it may be wrong. So we have to think about it. Right? Thinking process is also important. So what is creativity? तो एडवर्ड द बोनो ने बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है. There is no doubt that creativity is the most important human resource of all. Without creativity, there would be no progress, and we would be forever repeating the same pattern. इसलिए creativity बहुत जरूरी है. So what we need to do? We need to stir our creativity. इसलिए ये पिक्चर आपको दिखा रहा है कि पेंटिंग में से क्या निकल रहा है? बटरफ्लाइज निकल रहे हैं. तो आपकी क्रिएटिविटी को आपको स्टर करना है और कुछ नहीं. एंड एज वेल एज यू हैव टू फॉर्मुलेट योर फैंटेसीज. कल्पनाएं करनी है हमें, क्योंकि कल्पना करेंगे तभी क्या होगा? कुछ विचार आएंगे, विचार आएंगे तो ही उसको हम अच्छे बुरे में कन्वर्ट कर पाएंगे, और उसके ऊपर से हम उसमें आगे वेंचर में कन्वर्ट कर सकते हैं, या उस आइडिया का क्या पब्लिक के लिए यूज कर सकते हैं वो जान पाएंगे. सो एक्चुअली देयर आर 2 व्यूज ऑफ क्रिएटिविटी. एक है अलाइट व्यू और दूसरा है डेवलपमेंटल व्यू. तो हम दोनों का थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करेंगे. अलाइट व्यू मतलब क्या है? कि एक जो, जैसे हम कहते हैं ना थिंक टैंक, जो बहुत वेल एजुकेटेड पीपल है वो जो सोचते हैं वो अलाइट व्यू हुआ. और दूसरा जो व्यू है वो डेवलपमेंटल व्यू है, जिसमें काफी सारे पैरामीटर्स कवर होते हैं. आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल, बट एक थोड़ा सा उसको हम डिस्क्राइब करें तो एलाइटिस्ट व्यू में क्या क्या आएगा? तो गेटिंग न्यू एंड वैल्यूएबल आइडियाज, अ रेयर टैलेंट, क्रिएटिंग ग्रेट वर्क्स ऑफ आर्ट और साइंटिफिक डिस्कवरीज जो रिसर्च पीपल करते हैं. अनेबल टू बी टॉट, ये कैसा मानते हैं कि एक नेचुरल गिफ्ट है किसी इंसान में, वो इट इज अनेबल टू टॉट, राइट? नॉट रिलेवेंट इन माय जॉब और ऑर्गेनाइजेशन, एंड अ लोनली इंडिविजुअल प्रोसेस. ये अलाइड पीपल का मानना है कि क्रिएटिविटी ऐसी होती है. बट अगर हम उसका डेवलपमेंट व्यू देखें तो ये कॉमन है सबके लिए. बिकॉज मैंने सबसे पहले आपको पिक्चर दिखाया कि एक ब्रेन है, सबको सेम दिया ईश्वर ने. तो इट इज अवेलेबल टू एवरीवन, एविडेंट इन पर्सनल एंड मॉडेस्ट इनसाइट्स, रिलीज्ड थ्रू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल पोटेंशियल. आप अपना पोटेंशियल कितना डेवलप कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है. इट इज विद इन द स्कोप ऑफ ऑल जॉब्स. आप देख सकते हो कंपैरिजन. encouraged or discouraged within groups according to their climate.
आपके आसपास का क्लाइमेट एनवायरमेंट कैसा है, उस हिसाब से आप या तो एनकरेज हो जाओगे या डिस्करेज हो जाओगे, और उस हिसाब से आपकी क्रिएटिविटी पता चलेगी। एस्केप फ्रॉम पर्सनल स्टकनेस, राइट, मतलब यहां पे क्या हो रहा है, आपका ओरिजिनलिटी जो है, उसके अंदर जो पोटेंशियल है, उसकी वैल्यू यहां पे करनी है, राइट। बट अगर हम देखें तो हर दो टाइप के इंसान मिलेंगे, एक अलाइट व्यू वाले होंगे, एक डेवलपमेंट व्यू वाले होंगे। तो विच व्यू डू यू एग्री विथ, किससे एग्री करना है? तो उसका एक सॉल्यूशन है कि हमें रियलिटी को चेक करना है। व्हाट इज रियलिटी चेक? तो पहला पॉइंट है, क्रिएटिविटी इज नॉट एक्सक्लूसिवली फॉर एलाइट पीपल। ऐसा नहीं है कि जो लोग एकदम स्मार्ट है, टॉपर्स होते हैं, वो लोग के लिए ही होता है। नो, आपने देखा होगा काफी फार्मर्स है जो पढ़े लिखे नहीं होते लेकिन बहुत सारा इनोवेशंस करते हैं, और आईआईटी जैसी बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट में भी लोग होते हैं, कितने साल काम करते हैं फिर भी रिसर्च नहीं कर पाते हैं। तो दैट्स व्हाई क्रिएटिविटी इज नॉट एक्सक्लूसिवली फॉर एलाइट पीपल, इट कैन बी डेवलप्ड बाय इन ऑल पर्सन, कोई भी क्रिएटिव बन सकता है। That's why creativity is a personal problem solving process. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पे ही अभी बहुत सारा काम हो रहा है, और ये नॉन रूटीन काइंड है। मतलब अगर आपको प्रॉब्लम आया, आपने सॉल्व किया, तो सॉल्व करने में आप जो भी प्रोसेस यूज करोगे उसमें से ही क्रिएटिविटी बाहर आएगी। और ये क्रिएटिविटी जो है, इट कैन बी लर्न, प्रैक्टिस्ड एंड सक्सेसफुली अप्लाइड बाय ऑल इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। मतलब जो इलाइट पीपल ने उसको बाउंड्री बनाई थी, ये बाउंड्री लेस है, राइट। तो इसलिए आप सबके लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि यू कैन थिंक, यू कैन क्रिएट समथिंग। दैट्स व्हाई मैंने टॉपिक का नाम दिया है आइडिया टू वेंचर। अगर आपके पास अच्छा आइडिया है, हम प्रोसेस देखेंगे कैसे आपको आइडिया को नोट डाउन करके आगे बढ़ाना है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड 3 कंपोनेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी। तो पहला होता है डोमेन रिलेवेंट स्किल्स चाहिए, राइट। जैसे मैंने बताया, एक फार्मर है तो वो आगे अपने फादर से या आसपास के फार्मर से ही सीखता है। दूसरा है क्रिएटिव प्रोसेसेस, तो वो हमारा माइंड जब कोई प्रॉब्लम आता है तभी इस प्रोसेसेस में आने लगता है। और तीसरा होता है इंट्रिंसिक टास्क मोटिवेशन, मतलब आपको एक नहीं दर्द होता है, सी ऑलवेज ऐसा कहते हैं अनमेट नीड्स, या तो एक पेन। ये पेन सबसे इंपॉर्टेंट है कि कोई भी क्रिएटिविटी के लिए कोई कोई प्रॉब्लम बताना चाहिए, कोई पेन बताना चाहिए, जिसका सॉल्यूशन के लिए आपका दिमाग, आपका हार्ट और आपके हैंड्स, इसलिए उसको हैंड हार्ट हेड भी कहते हैं। गांधी जी ने बहुत अच्छा कहा है नई तालीम में कि अगर जब इंसान अपना हाथ, अपना हार्ट और अपना मस्तिष्क, मतलब हैंड हार्ट और हेड तीनों को मिक्स करके काम करेगा, उसमें कभी भी सक्सेस ना होने के चांसेस नहीं है। तो क्रिएटिव थॉट के स्टेजेस कौन से होते हैं? तो आप अभी देखना, आप अपने हिसाब से अपने आप को जज करना कि क्या आप भी इसी प्रोसेस से या इसी थॉट प्रोसेस से आप पास होते हो। तो सबसे होता है पहले प्रिपरेशन, फिर आता है इंक्यूबेशन, फिर आता है इनसाइट, फिर है इवेल्युएशन एंड देन इलोबोरेशन। व्हाट इज दिस? तो प्रिपरेशन मतलब देखो, एक कुक की बात करो, या तो आप मान लो एक लड़की है जो मम्मी के पास से सबसे पहली बार किचन में खाना बना रही है, तो वो सबसे पहले क्या, कौन से फेज पे आएगी क्रिएटिव बनने के लिए? प्रिपरेशन फेज पे, क्योंकि उसके लिए काफी चीजें नहीं होगी लेकिन मम्मी को पता है। तो अच्छा, अभी मम्मी ने जो प्रोसेस किया उसमें क्रिएटिव कब बन सकती है? जब वो प्रिपरेशन में कोई चेंज करे, राइट। सेकंड है एग्जांपल इंक्यूबेशन का। तो अभी हम जो अभी बात कर रहे हैं वो इंक्यूबेशन सेंटर की बात है। अभी हम जो डिस्कशन कर रहे हैं, जिस स्टॉक रखी है, वो दैट इज व्हाट, इट्स अ रिजल्ट ऑफ इंक्यूबेशन सेंटर। तो इंक्यूबेशन में क्या है कि आपका एक सबसे इनिशियल लेवल पे जो आपका आइडिया है, जिसको आप लोगों को डिस्कशन करके, अलग अलग शेयरिंग करके, आप उसको क्या कर सकते हो, एक अच्छे से रिजल्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंक्यूबेशन। इनसाइट, व्हाट इज इनसाइट? तो आपकी नजर, आपका नजरिया कैसा है, वो लोगों के काम का है, किस तरह से काम आएगा, नीड कैसे फुलफिल करेगा, तो दैट विल बी इन इनसाइट। फिर आप इवोल्यूशन करोगे कि यार ऑलरेडी ये है कि नहीं है, वो चेक करना पड़ेगा। अगर कोई ऑलरेडी इस पे काम कर रहा है तो फिर वो आपको थोड़ा अलग वे से सोचना पड़ेगा। और देन इलाबोरेशन, अगर आपने वो सक्सेसफुली कर भी लिया तो इलाबोरेट करना पड़ेगा कि और क्या क्या उसके स्पेसिफिकेशन होंगे। जैसे आप अगर मोबाइल ले रहे हो, एप्पल का लोगे या ओप्पो का लोगे, तो यू आर चेकिंग इट्स ऑल फीचर्स, तो और नए नए जितने फीचर्स आएंगे आप उसका कंपेयर करोगे, राइट। सो दैट्स व्हाई दिस आर ऑल डिफरेंट स्टेजेस इन क्रिएटिव थॉट। तो नाउ क्रिएटिविटी देख ली, तो व्हाट इज इनोवेशन? इनोवेशन और क्रिएटिविटी में क्या डिफरेंस है?
तो और कुछ नहीं है इनोवेशन। देखो ये 3 वर्ड होते हैं, जनरली साइंस स्टूडेंट्स ये 3 वर्ड पढ़ते हैं कि डिस्कवरी, इन्वेंशन एंड इनोवेशन। तो डिस्कवरी मतलब क्या, जो पहले पता नहीं था और पता चला, दैट इज डिस्कवरी, राइट। जैसे डिस्कवरी चैनल आती है, व्हाट दे आर डूइंग, हमें कुछ नहीं पता होता वो बताता है। व्हाट इज इन्वेंशन, अगर बल्ब है था ही नहीं और आया, दैट इज इन्वेंशन। बट अगर हम इनोवेशन कर रहे हैं, मतलब मान लो आपका टेलीफोन था और अभी स्मार्टफोन आ गया, तो व्हाट इज दैट, इनोवेशन, राइट। पहले लोग वॉशिंग मशीन नहीं था, अभी ऑटोमेटिक सिस्टम आ गई, अभी सब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, तो वो क्या हो रहा है, इनोवेशन हो रहा है। तो इनोवेशन इज नथिंग बट व्हाट, न्यूनेस एंड एडिंग वैल्यू। तो उसमें वापस 2 टाइप की वैल्यू है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन, दैट इज कॉल्ड फंक्शनल वैल्यू, एंड दूसरी है डिजाइन ड्रिवन, सिंबॉलिक वैल्यू। तो आप देखना कोई भी इनोवेशन आप ले लो, तो या तो टेक्नोलॉजी चेंज होती है या डिजाइन चेंज होती है, और ज्यादा कुछ नहीं होता। मतलब डिजाइन में चेंज समझो कि बड़ा है छोटा हो जाएगा, और टेक्नोलॉजी तो आप देखो पहले के आपके पेन ड्राइव्स, या पेन ड्राइव छोड़ दो, फ्लॉपी डिस्क ले लो, डिस्क आती थी फ्लॉपी की, उसमें से आप कहाँ पे आए, सीडी पे, सीडी पे से डीवीडी पे आए, डीवीडी पे से पेन ड्राइव पे आए, अभी क्या हो गया, हार्ड ड्राइव आ गई। सो वहां पे क्या हो रहा है, डिजाइन भी चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी भी चेंज हो रही है। सेकेंड पार्ट क्या है, डिग्री ऑफ न्यूनेस। तो उसमें 2 टाइप है, मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, बहुत सारा आपको नेट से मिल जाएगा। तो रेडिकल इनोवेशन होता है और इंक्रीमेंटल इनोवेशन होता है। तो जैसे रेडिकल इनोवेशन क्या हुआ, आप एग्जांपल लो कि एकदम से टेलीफोन से मोबाइल आ गया, तो दैट इज रेडिकल इनोवेशन। बट अभी मोबाइल में वो टच पैड कब आया, तो वो क्या आया, इंक्रीमेंटल इनोवेशन। जैसे जैसे नीड आई कि भाई दबाना टाइम बिगाड़ रहा है, ऐसे ऐसे टच स्क्रीन आ गई, तो दैट इज इंक्रीमेंटल इनोवेशन, राइट। तो दैट्स व्हाई इनोवेशन बेसिकली डिपेंड अपॉन व्हाट, न्यू वैल्यू ऐड करनी है, उस पर डिपेंड करता है, और कितना वो डिग्री ऑफ न्यूनेस कितना है। तो ये यू कैन गो थ्रू इट, आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल। ये पूरा डिटेल है कि कैसे इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट हुए हैं और किस किस केस में रेडिकल इनोवेशंस हुए हैं, राइट। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज अ न्यू इनोवेशन, किसको हम कहेंगे, हाउ विल यू डिफाइन अ न्यू इनोवेशन। तो अलग अलग लोगों के लिए उसका मीनिंग डिफरेंट होगा, राइट। तो टोटल अगर हम 100% गिन ले, तो वो 100% को ग्रिफिन और हैमिल्टन ने अलग अलग परसेंटेज में डिवाइड किया है, राइट। पहला है कि 10% लोगों के लिए इनोवेशन क्या है, न्यू टू द वर्ल्ड। 20% के लिए क्या है, न्यू टू द फर्म्स। 26% के लिए क्या है, एडिशन टू एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और प्रोसेस, राइट। दूसरे 26% के लिए क्या है, इंप्रूवमेंट एंड रिवीजन टू एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स और प्रोसेस, मतलब इंप्रूवमेंट की बात है। 7% पीपल के लिए क्या है, रीपोजिशनिंग विथ डिफरेंट पर्पस, राइट। मतलब देखो एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, कॉम्ब है, तो कॉम जनरली किसके लिए यूज करते हैं, આપણે કાંસકાને શેના માટે યુઝ કરીએ, વાળ ઓળવા માટે। પણ મેં એક ઇનોવેટિવ ટીચરને જોયા જેમને હમણાં રાષ્ટ્રપતિ એવોર્ડ બી મળ્યો ગુજરાતમાં, પ્રકાશ સુથાર સર છે। એમનું ઇનોવેશન તમે બિલીવ નહીં કરો, ફિઝિક્સના પ્રેક્ટિકલ એ કાંસકાથી બતાવે છે। તમને કદાચ ખ્યાલ હોય કે ઇફ યુ નો નોન સુપર ઇમ્પોઝેબલ જે લાઇટ છે, અથવા આપણે એને શું કહીશું કે એક જ ડાયરેક્શનમાં લાઇટ આવે, તો કોમથી તમે બહુ સરસ રીતે એક્સપ્લેન કરી શકો એને। સો વોટ ઇઝ ધેટ, રીપોઝિશનિંગ। એમને આખું પર્પસ જ બદલી કાઢ્યો, વાળ ઓળવા માટે નહીં, પણ આખું તમને એક લાઇટના સ્ટડી કરવા માટે એનો યુઝ કરે છે, राइट। तो उसमें भी यहाँ पे 2 पार्ट दिए हमने, न्यू टू द मार्केट, मे बी जोग्राफिकल और सेगमेंटल बेस्ड, और न्यू टू द सीजन। एंड 11% लोग क्या मानते हैं, कॉस्ट रिडक्शन, कि कॉस्ट रिडक्शन हुआ, देखो जनरली टाइम, एनर्जी या पैसे बचेंगे, इसी को हम क्या बोलेंगे, रिसर्च बोलेंगे। जनरली आप फार्मा में या कहीं पे भी R&D में देखो, तो R&D में साइंटिस्ट क्या करते हैं, या तो कॉस्ट रिडक्शन करेंगे। तो कॉस्ट रिडक्शन होगा कैसे, एनर्जी बचाने से, टाइम बचाने से, या मैन पावर बचाने से। तो ये भी न्यू इनोवेशन में आ सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बाइफर्केशन है, राइट। तो 10% न्यू टू द वर्ल्ड, 20% न्यू टू द फॉर्म्स, 26% एडिशन कुछ किया एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में या प्रोसेसेस में, या तो आपने इंप्रूवमेंट किया, राइट, उस प्रोडक्ट्स और प्रोसेस में, या पूरा रिपोजिशनिंग किया, या तो कोई डिफरेंट पर्पस के लिए यूज किया, बट एडिशनल पर्पस ले लिया, राइट। जैसे दूसरा भी एग्जांपल इसके लिए बहुत अच्छा है, कॉलगेट है,
तो अब कॉलगेट का हम टूथब्रश ब्रशिंग के लिए तो यूज करते ही है, लेकिन आप देखना आपकी मदर क्या करेगी, आपके चांदी के या उसके गहने हैं उसको साफ करने के लिए भी लगा के उसमें साफ करते हैं। तो दिस इज व्हाट अगेन विद डिफरेंट पर्पस, राइट। तो यहाँ पे दूसरे एग्जांपल मैंने दिए हैं, आप समझ सकते हो ये कि व्हाट इज दिस। देखो ये एक पूरा न्यू कॉन्सेप्ट आ गया डिजाइन का, बुक रखने का, बुक शेल्फ है ये। तो पूरा यू कैन सी एक पूरा डिजाइन पूरा चेंज कर दिया, राइट। तो ये क्या हो गया, बुक शेल्फ ज्यादा बुक रख पाएगा और कम स्पेस, तो दैट इज वन इनोवेशन। हियर ऑल्सो यू कैन सी ये सारा बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट है, राइट, जिसमें आप देख सकते हो अलग अलग डेकोरेटिव मटेरियल्स रखे हैं, शो पीस रखे हैं। सो दैट इज ऑल व्हाट अ न्यू इनोवेशन। अगेन यू कैन सी दिस, आप अलग अलग डिजाइन, तो मतलब ये डिजाइन में चेंज आया, तो हमने आगे जैसे देखा या तो डिजाइन में या टेक्नोलॉजी में चेंज आता है। और एज ए मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको कि पहले फोन के सिस्टम क्या थी, अभी क्या था। पहले आपका पोस्ट होता था, बाद में ईमेल आए, बाद में फेसबुक आ गया, ट्विटर आ गया, सोशल मीडिया आ गया, टैब्स आ गए, है ना। तो दैट इज और रिवॉल्यूशन इन एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट। और अभी भी नया चेंज हो रहा है, अभी होलोग्राम पे से अभी स्टडी होगा, मतलब देयर इज नो नीड ऑफ एनी फिजिकल थिंग्स, आपको सिर्फ क्या कहते हैं विजुअल बेसिक्स जो कहते हैं, और उसका यूज करके आप आराम से 3 डायमेंशनल सब देख सकते हो। तो ये और नया इनोवेशन आ रहा है। हाँ, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, नॉट ऑल इनोवेशंस आर सक्सेसफुल। जरूरी नहीं है कि सारे इनोवेशंस सक्सेसफुल हो। तो कौन से इनोवेशन को हम सक्सेसफुल मानेंगे, जिसमें इन्वेंशन तो हो ही या भले मॉडिफिकेशन हो, लेकिन उसका कॉमर्शियलाइजेशन होना चाहिए, मतलब उसमें से आपको अर्निंग होना चाहिए। तो जब इन्वेंशन या मॉडिफिकेशन विथ कॉमर्शियलाइजेशन होगा, देन ओनली यू कैन से वो इनोवेशन सक्सेसफुल होंगे, राइट। तो आप मार्केट में बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो। अभी आपने सुना होगा ओयो करके होटल की पूरी सिस्टम आई है, राइट। तो वो बीच में ब्रेक आया था, लेकिन वापस उसने क्या किया, कॉमर्शियलाइजेशन अच्छा किया, तो नाउ ये सक्सेसफुल। उबर ले लो, ओला ले लो, बहुत सारे सिस्टम है जिसमें आप एक एग्जांपल समझ सकते हो, राइट। नाउ बिफोर गोइंग टू आइडिया जनरेशन, लेट मी टेल यू व्हाट इज द एसएमई। आपने नाम सुना ही होगा एसएमई का, स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइज। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एंटरप्राइज, क्योंकि एंटरप्रेन्योर बनना है या बिजनेसमैन बनना है तो आपको एंटरप्राइज को समझना पड़ेगा, एंटरप्राइज की इंपॉर्टेंस को समझना पड़ेगा, राइट। सो SMEs play an important role in the change of technology and innovation, क्योंकि अगर आप इनोवेशन करोगे तो आप लोगों तक पहुंचोगे, तो आपको एंटरप्राइज तो बनानी पड़ेगी। SME create an additional sense of competition whilst also providing a mechanism for regeneration, right? मतलब क्या है, तो आपका स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइज जो होते हैं वो कंपटीशन क्रिएट करेगा, तभी क्या होगा, आप नया क्रिएटिव सोचोगे, आइडिया नए नए लगाओगे और नए नए प्रॉब्लम सॉल्व करोगे और मार्केट में स्टेबल रहोगे, सस्टेनेबल रहोगे, राइट। एज वेल एज आपका स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइज जो होता है वो इंटरनेशनल कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट करता है और उसका कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा होता है। दूसरा, अगर आप अकेला ही कुछ करोगे तो कोई मतलब नहीं है। अगर आप 10 लोगों को जॉब करोगे तभी तो आप एंटरप्रेन्योर हुए। व्हेन यू आर अ बिजनेसमैन, व्हेन यू आर क्रिएटिंग अ जॉब्स, है ना, देयर आर 2 पीपल, जॉब सीकर्स एंड जॉब क्रिएटर्स। तो इसलिए एंटरप्रेन्योर का डेफिनेशन ये है कि दे आर द जॉब क्रिएटर्स। तो एसएमई क्या करती है, जॉब क्रिएट करती है, और बिकॉज ऑफ ऑल दिस इकोनॉमी ग्रोथ होता है। तो इसलिए स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो देखो वापस में एक बैकग्राउंड में जाता हूं कि क्रिएटिविटी से इनोवेशंस पे आएंगे, इनोवेशंस को अप्लाई करने के लिए यू नीड एंटरप्राइज, और इनिशियली एंटरप्राइज में आपको क्या बनना पड़ेगा, स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइज, और उसके इंपॉर्टेंस मैंने बताया, राइट। सो व्हाट एक्सप्लेन दिस ग्रोथ, इस ग्रोथ को एक्सप्लेन कैसे कर पाएंगे हम, तो होगा क्या, स्ट्रक्चरल शिफ्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू सर्विसेज। अगर आप क्रिएटिविटी इनोवेशन को इन्वॉल्व करोगे तो पूरा क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, जिसको हम आगे देखेंगे डिजाइन थिंकिंग में कैसे करते हैं वो, राइट। दूसरा ग्रोथ कहाँ होगा, पर्सनल फ्लेक्सिबल टेलर मेड सर्विसेज में। मतलब देखो अभी आप समझो
पहले आपको अगर बाहर से खाना होता तो आपको खुद जाना पड़ता था, अभी होम सर्विस आ गई, राइट। फिर पहले अगर ओल्ड एज पर्सन है उसके लिए कोई सर्विसेज नहीं थी, अभी आराम से आप कुछ भी फोन करो, मैसेज कर दो, यू विल गेट एवरीथिंग। तो क्या हो रहा है, ये फ्लेक्सिबल हो रहा है, टेलर मेड हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि जो कस्टमर को आपको ढूंढने जाना पड़ेगा, अभी ऐसा नहीं है कि कस्टमर आपके पास आएगा, आपको कस्टमर के पास जाना पड़ेगा, राइट। सेकेंड, नेक्स्ट पॉइंट है रिस्ट्रक्चरिंग बाय लार्ज फर्म्स, फोकस ऑन कोर एक्टिविटीज, सब कॉन्ट्रैक्ट, नॉन कोर एक्टिविटीज। तो देखो अभी आप रिलायंस ले लो, अदानी ले लो, ये सारे ग्रुप इतने बड़े क्यों हो गए, तो वो लोग रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं। आप देखो रिलायंस सिर्फ पहले क्या करते थे, पेट्रोल केमिकल्स में थे, नाउ यू सी एवरीथिंग इन एवरीवेयर, रिलायंस है, टाटा है, अदानी है, सब फील्ड में आने लगे, राइट। तो व्हाट इज दिस, रिस्ट्रक्चरिंग बाय लार्ज फर्म्स। हमारे यहाँ अरविंद भी है, अरविंद मिल ने अपना खुद का एनवायरमेंट कंसल्टेंसी शुरू किया है, वो सिर्फ टेक्सटाइल में थे, बट नाउ दे जंप टू एनवायरमेंट। आप देखो वाघ बकरी का एग्जांपल लो, तो सिर्फ चाय बेचते थे, अभी क्या है, उनकी लॉन्च बना ली उन्होंने, पूरा हॉस्पिटैलिटी मतलब लाइक काफे के अंदर आ गए। तो पूरा ये रिस्ट्रक्चरिंग बाय लार्ज फर्म क्यों हो रहा है, क्योंकि वो लोग भी चेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, राइट। टेक्नोलॉजिकल चेंज में ग्रोथ कैसे होगा, तो ऑलरेडी आप देखो अभी कोरोना की रसी, वैसे आप लेता है कि वैक्सीन जो है वो आते आते 5 साल लगते हैं। आप बिलीव, किसी को कोई भी आप स्टडी करोगे, रिसर्च करोगे, तो बताइए कि वैक्सीन आने में 5 साल लगते हैं। तो ऐसा तो क्या जादू हो गया कि 1 साल में भी वैक्सीन बन गई, तो दैट इज द हार्ड वर्क ऑफ साइंटिस्ट। तो कुछ तो किया होगा ना साइंटिस्ट ने, क्योंकि सी गवर्नमेंट अथॉरिटी होती है जो सब कुछ चेक करने के बाद ही पब्लिक को देती है। तो अगर 1 साल में वैक्सीन बन सकती है तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ भी हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, राइट। सिर्फ क्या चाहिए, आइडिया एंड कन्वर्जन इनटू रिजल्ट, राइट। तो टेक्नोलॉजिकल चेंज में साइंटिफिक डिस्कवरीज एक्सप्लॉइटेड बाय स्मॉल फर्म्स, प्रोडक्शन एंड आईटी टेक्नोलॉजीज हैव रिड्यूस्ड द रोल ऑफ इकोनॉमिक ऑफ स्केल। अगेन कोरोना में हमने सब कुछ ऑनलाइन कर दिया, अभी मैं भी लेक्चर ऑनलाइन ले रहा हूँ, राइट। तो ये क्या है, दिस इज बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी होती नहीं तो हम शायद अभी आराम से घर पे बैठ के कुछ नहीं करते और हमारा इकोनॉमी डाउन हो जाता, राइट। नेक्स्ट है लो कॉस्ट एंड एक्सेस टू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो अभी देखो पहले अगर आप देखोगे 2000 में, तो आपका आउटगोइंग इनकमिंग कॉल 20-25 रुपीज के आसपास था, और दोनों के चार्जेस थे। आज देखो इजीली कोई भी वेंडर, छोटा वाला वेंडर, वेजिटेबल वेंडर हो या कोई भी छोटा वेंडर, वो भी आराम से यूज कर रहा है क्योंकि फ्री स्कीम्स है। तो हुआ क्या, कॉस्ट लो हो गई, इसलिए बहुत लोग उसको यूज कर रहे हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको सोचने हैं, इसलिए आपको ये प्रेजेंटेशन कब काम आएगा, जब आप सीरियसली अपना वेंचर क्रिएट करने का प्लान कर रहे हो। तो प्लीज गो थ्रू दिस स्लाइड वन बाय वन एंड पुट योर ओन आइडियाज एज वेल एज आपके अपने खुद के विचार उसमें रखेंगे, तो आप अच्छी तरह से आपका प्रोडक्ट या सर्विस दोनों में से कोई भी डेवलप कर पाओगे। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल रादर देन फाइनेंशियल कैपिटल एज द बेसिस फॉर कॉम्पिटिटिवनेस। आप देखो आजकल ह्यूमन कैपिटल पे इंपॉर्टेंस ज्यादा दिया गया है, इसलिए तो एचआर, आप देखो हर इंडस्ट्री में एचआर मतलब ह्यूमन रिसोर्स पूरा डिपार्टमेंट बन गया है। क्या कर रहा है वो, ह्यूमन कैपिटल को ज्यादा ध्यान दे रहा है, राइट। और फाइनेंशियल कैपिटल को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, ओके। कंज्यूमर चॉइस इज द नेक्स्ट पॉइंट। in that reaction against mass produced products and services। तो इसमें क्या होगा, नेचुरल प्रोडक्ट है, राइट, डिमांड फॉर ऑथेंटिसिटी है, इंडिविजुअलिज्म है, राइट। तो ये मार्केट को देख के कर रहे हैं। आप देखो जियो, अगर वापस बात करो, जियो का मोबाइल आया, उन्होंने क्या किया, पूरे इंडिया में एक साथ मार्केट किया और फ्री दिया पहले। तो कंज्यूमर की चॉइस क्या दी कि बाकी सारे कंपटीटर्स थे भले, लेकिन उन्होंने क्या किया, मास में इनको प्रोडक्ट को डेवलप किया, पहले फ्री में दिया और फिर क्या किया, सबको हैबिचुअल बना दिया। अभी कोई भी है ऐसा नहीं है कि जो कम बात करेगा, एवरीवन आर रेडी टू टॉक एंड टॉक ऑन द मोबाइल्स। तो उन्होंने क्या पकड़ लिया, जो सर्विसेज है उसमें उन्होंने मास को पकड़ लिया, राइट। नेक्स्ट है डीरेगुलेशन ऑफ मार्केट्स। तो आप देखो एयरलाइंस है, टेलीकॉम्स है, मीडिया है, तो इसमें जो रेगुलेशंस थे उसमें भी चेंजेस बहुत सारे आए हैं। आप देखना उसमें भी सर्विसेज बहुत सारी चेंज हुई है,
राइट। मीडिया में आप देखो पहले सिर्फ दूरदर्शन की न्यूज ही आ सकते थे, अभी आप देखो 50 चैनल्स है और सारी की सारी कमा रही है, राइट। सो दैट इज व्हाट डीरेगुलेशन ऑफ मार्केट्स, ये भी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सनल चॉइस, rebellion means reaction against working in large impersonal organizations want to control own destiny। तो ये आपकी पर्सनल चॉइस होगी, आप अपने ग्रोथ, मतलब आप देखना आजकल क्या हो गया है, ट्रेंड बन गया है, एक्चुअली गलत है वो, कि भाई 1 साल 2 साल अगर इंक्रीमेंट नहीं मिला शिफ्ट द जॉब, या तो अच्छा ग्रोथ मिल रहा है, डबल सैलरी मिल रही है, 1.5 टाइम्स ज्यादा मिल रही है, जंप। तो पहले के टाइम में क्या था कि एक पर्सन एक ही जगह काम कर रहा था और अपना पूरा लाइफ स्पेंड करता था ऐसा। लेकिन आजकल क्या हो गया है, पर्सनल चॉइस की वजह से पीपल आर जस्ट जंपिंग फॉर देयर ग्रोथ, राइट। तो उसके हमें वापस दोनों पहलू देखने पड़ेंगे कि ग्रोथ का एक लिमिटेशन भी होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस, ये हम लास्ट में भी डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वेंचर कैपिटल फॉर द ग्रोथ। क्योंकि अगर आपके पास आइडिया है, आपने उसका प्रोटोटाइप भी बना लिया, लेकिन अगर आप उसको प्रोडक्शन ही नहीं कर पाओगे, आपके पास उतना कैपिटल ही नहीं है, तो क्या करोगे। सो दैट्स व्हाई अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। उसके अलावा ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अवेलेबिलिटी ऑफ सपोर्ट, एडवाइस एंड एजुकेशन। जैसे मैं हूं, मेरा लैब ऑफ अपॉर्चुनिटी करके मेरा फॉर्म है, तो वो क्या कर रहा है, आई एम गिविंग अपॉर्चुनिटी टू ऑल द न्यू पीपल। तो उसमें आप सपोर्ट भी मान लो, एडवाइस मान लो, एजुकेशन मान लो। अच्छा, यहाँ पे एक मैं सिंपल एग्जांपल लेता हूं। मान लो आप ये सारी मेहनत कर रहे हो, लेकिन आपके घर में ही आपके लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, तो क्या होगा, आपके दिमाग में जो वो मैंने सबसे पहला पिक्चर दिखाया था, उसमें काफी चीजें काम नहीं करेगी, राइट। तो मींस ग्रोथ के लिए सपोर्ट, एडवाइस और एजुकेशन तीनों की भी जरूरत है। तो कैसे करेंगे, हाउ डू दे डू इट। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है, तो अभी इस पे से हम आइडिया जनरेशन पे आएंगे। तो मैंने सबसे पहले नीड क्रिएट की, देखो मैंने भी क्या बताया आपको, क्रिएटिविटी बता दिया, इनोवेशन बता दिया, लेकिन एंटरप्राइज बनाना है तो यू मस्ट हैव अ नीड। तो नीड समझ में आएगी तो हम आइडिया जनरेट करने में काबिल हो पाएंगे। तो अपॉर्चुनिटी, रिसोर्सेस एंड टीम, तो ये टिमोन्स का मॉडल है जो 2007 में बना है। काफी हद तक अभी इसमें भी बहुत सारे मॉडिफिकेशन हुए हैं, लेकिन मैं इस पे इसलिए आ रहा हूं क्योंकि 3 टर्म जो इन्होंने बताई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कि आपने अपॉर्चुनिटी देखी, आपने रिसोर्सेज ढूंढ लिए और आपने टीम बना ली, तो क्या हो जाएगा, आप आराम से अपनी एंटरप्राइज बना सकते हो। यू कैन क्रिएट योर ओन बिजनेस प्लान, जो क्या करेगा, जो नीड है उस नीड को फुलफिल करेगा, मतलब गैप है उसको पूरा करेगा। जैसे आप मान लो अभी बायजूस है, राइट, या आपका क्या कहते हैं अनअकैडमी है, ये सारे अभी कितने सारे कैसे आ गए, पहले नहीं थे क्या, थे, लेकिन तब उनकी इंपॉर्टेंस नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ली कि अभी सारे बच्चे घर पे ही है, सब घर पे ही पढ़ रहे हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा क्यों ना करें कि टीचर की टीम बना के हम अपना खुद का एक प्रोडक्ट दे दे। तो दे हैव ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। अच्छा, अकेली अपॉर्चुनिटी से कुछ नहीं होगा, व्हाट दे हैव क्रिएटेड, दे क्रिएटेड टीम। और टीम को क्या दिया, रिसोर्सेस दिए, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेस, एकेडमिकल रिसोर्सेस, व्हाटएवर। तो अभी आप देखो बायजू का जो आप मार्केट देखोगे बहुत ज्यादा है, तभी तो वो इतने बड़े बड़े एक्टर्स को अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए रख सकता है। यू कैन सी शाहरुख खान इज कमिंग एंड गिविंग द एडवर्टाइजमेंट ऑफ बायजू, राइट। तो क्यों, तो उसके पैसे आए कहां से, तो सिंपल सी बात है, उन्होंने अपॉर्चुनिटी ग्रैब की, टीम डेवलप की, रिसोर्सेज को प्रॉपर यूज किया एंड क्रिएटेड अ बिग बिजनेस प्लान। सो व्हाट इज द नीड ऑफ एन एंटरप्राइज। तो ये जो मैंने बताया उसी को और इलाबोरेट कर रहा हूं मैं। तो अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली आपको देखनी है कि अपॉर्चुनिटी कहां है। फिर आपके पास एक लीड एंटरप्रेन्योर होना चाहिए और दूसरी एक टीम होनी चाहिए, मतलब एक मेन लीडर होना चाहिए और पूरी टीम बनानी है आपको। देन रिसोर्स, पेरिसमनी एंड क्रिएटिव यूज ऑफ रिसोर्सेस, मतलब रिसोर्सेस का कलेक्शन और उसका यूज, ये दोनों होना चाहिए। बहुत बहुत लोगों के पास रिसोर्स होगा, आप देखना लाइब्रेरीज बहुत सारी है, लेकिन अगर उसका यूज ही नहीं हो रहा तो लाइब्रेरी क्या काम की। तो सेम में आपके पास रिसोर्सेस है, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस रिसोर्सेस का प्रॉपर क्रिएटिव यूज होना चाहिए, वो भी इंपॉर्टेंट है। फिर ये तीनों के बीच में फिट एंड बैलेंस, राइट। कंपटीशन होगी तो अगर आपकी टीम को कोई तोड़ने का भी ट्राई करेगा तो आपको उसको बैलेंस करना है, राइट। इट शुड बी इंटीग्रेटेड एंड होलिस्टिक। तो ये है क्या, तो कि भाई स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, एजुकेशन के लिए, तो होलिस्टिक आइडिया है एंड इट शुड बी इंटीग्रेटेड, राइट। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है, इट शुड बी सस्टेनेबल। क्या होना चाहिए, सस्टेनेबल, राइट। तो इसमें दो चीज है, पॉजिटिव नेगेटिव, जैसे कहते हैं ना, हर
सिक्के के दो बाजू होते हैं, दो पहलू होते हैं। तो अगर पॉजिटिव बात करें तो एंटरप्राइज रिक्वायर्स थॉट एंड प्रिपरेशन। दूसरा, इट वांट्स टू मेक मनी, राइट, एन अपॉर्चुनिटी विद लिटिल और नो पोटेंशियल, एंड टू क्रिएट एंड बिल्ड वेल्थ एंड टू सक्सीड। ये एक पॉजिटिव पार्ट है, लेकिन साथ में आपको रिस्क भी लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इट इज एन अनप्लान्ड इवेंट। आपने ऐसा सोचा नहीं था कि आप ऐसा करने वाले हो। यू हैव टू लूज मनी, हो सकता है सक्सेस ना भी हो जाए। कैन बी एन एनॉर्मस अपॉर्चुनिटी, मतलब ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया बैजू का, राइट। एंड यू मस्ट फर्स्ट relinquish your wealth and you must experience failure। तो फेलियर से भी सीखना है ना। जनरली हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमें फेलियर के बारे में कोई कुछ बताता नहीं है, बट मैं तो यही बोलूंगा कि फेल ज्यादा हो जाओगे उतना ज्यादा सीखोगे। जितने आप फेल होंगे, हाँ, उसमें फर्क ये पड़ेगा कि आपका एज उसमें डिस्टर्ब करेगा कि भी फेल हो गए, क्योंकि हमारी सिस्टम ऐसी है कि फेल होना मतलब पूरा साल बिगड़ा। तो एक्चुअली ऐसा नहीं है, फेल में से आपको जितना सीखने को मिलेगा वो सक्सेस में नहीं मिलता है, राइट। तो वो भी एक्सेप्ट करना सीखना पड़ेगा। सो आई एम नॉट गोइंग इन दिस, या तो क्या करना है आपको? अपॉर्चुनिटी को गेन करना है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करनी है और इसका एक्सप्लॉयटेशन करना है, राइट। तो मतलब इसमें तीनों चीज काम आएगी, आपका फर्म, आप इंडिविजुअल, आप खुद, और आपका एनवायरनमेंट कैसा क्रिएट कर रहे हो। तो ये कोई भी एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत काम के तीनों पॉइंट है। अपॉर्चुनिटी आपने बनाई तो यू आर द इंडिविजुअल, and you are creating the whole business plan, you are creating the environment and people working there, so that is your firm। तो होगा क्या इसी से? एंटरप्रेन्योर डिस्कवरी करोगे तो कंटिन्यूस प्रोसेस चलती ही रहेगी। आप ऐसा नहीं कि एक प्रोडक्ट लेके बैठ जाओगे, नहीं चलेगा। यू नीड टू कंटिन्यूस इवेल्युएट इट, यू हैव टू रीडिजाइन इट, राइट। तो हम आगे उसी पे आ रहे हैं। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज आइडिया, व्हाई वी नीड टू जनरेट द आइडिया, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ आइडिया। मैं इसी पे ज्यादा फोकस करूंगा आज के लेक्चर में, क्योंकि हम क्या करते हैं, सोचते बहुत है लेकिन एक्शन में उसमें से कुछ कम आता है। जैसे मान लो एक स्टूडेंट होता है, सोचता है कि मैं सुबह 5 बजे उठ जाऊंगा, ये पढ़ूंगा, लेकिन फिर 5 बजते हैं ना, अलार्म भी बजेगा, वो उठ नहीं पाता है। क्या सोचेगा? कर लेंगे कल। तो बस यही है कि आइडिया तो है कि ये है, बट उसको एक्शन में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ प्रोसेसेस करनी पड़ेगी जो हम आज सीखेंगे। तो let us see, do ideas are opportunities or do problems are opportunities? Or in reality an idea is only an opportunity when it adds value to consumer, it solves a problem, it can make some money, right? Because without money nothing is possible, and it is a good fit with the entrepreneurial team। तो वापस से टिमन्स के ही पॉइंट्स में बात कर रहा हूं। तो आइडिया सिर्फ अपॉर्चुनिटी नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन आपका आइडिया अपॉर्चुनिटी कब बनेगा? तक क्યારે બનશે કે જ્યારે તમે કન્ઝ્યુમરમાં કોઈ વેલ્યુને એડ કરશો। યુ વિલ સોલ્વ અ પ્રોબ્લેમ, તમે કોઈ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરશો, ક્યાં તો તમે કે એમાંથી પૈસા ગેઇન કરશો, અથવા તો તમારી એન્ટરપ્રેન્યોર ટીમને આખાનો ગ્રોથ એમાં દેખાશે, રાઈટ। સો કેટલા ટાઈપના આઈડિયા હશે? હાઉ મેની टाइप्स ऑफ आइडियाज जो रियली हम यूज कर सकते हैं आगे ग्रोथ करने के लिए? तो सबसे पहला होगा अ ग्राउंड ब्रेकिंग इन्वेंशन, जो बहुत हाई रिस्क के होता है, क्योंकि इन्वेंशन आपको टाइम लेगा और ग्राउंड ब्रेकिंग होगा। जैसे अभी आप वैक्सीन का एग्जांपल ले सकते हो। दूसरा होगा अ ब्रांड न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज। देखो ये सारे इंपॉर्टेंट है, इसी पे दुनिया चलती है, आपके आइडियाज होंगे इसी में आएंगे। ये बाइफर्केशन है, राइट। या तो आप एक इन्वेंशन पे के साथ आओगे, या आप प्रोडक्ट और सर्विस के साथ आओगे, या आप कोई प्रॉब्लम सॉल्यूशन के साथ आओगे, राइट। तो लेट अस सी अगेन। तो पहला है ग्राउंड ब्रेकिंग इन्वेंशन, जो बहुत हाईली रिस्क है। ब्रांड न्यू प्रोडक्ट और सर्विस, वेरी हाई रिस्क है। अ न्यू सॉल्यूशन टू एन एवरीडे प्रॉब्लम, मान लो आपके घर में पानी बार बार टपक रहा है, आपने कोई ऐसी सिस्टम बना ली जो पानी टपकना बंद कर दे, तो क्या है? दैट इज व्हाट अ न्यू सॉल्यूशन टू एन एवरीबॉडी प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्या है? एन एनहांसमेंट टू एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज, जो लेस रिस्की है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो बना है उसमें थोड़ा ही ऐड करना है, कुछ एनहांसमेंट ही करना है। जैसे मान लो अभी टच स्क्रीन मोबाइल आ रहा है, आप उसको कॉम्पैक्ट कर दोगे तो आपने कुछ एनहांस किया, राइट। या तो उसमें आप जो भी है गोरिल्ला ग्लास यूज करते हो, उसके बदले कोई नई प्रोडक्ट ला दोगे, राइट। अ गैप इन एन एग्जिस्टिंग मार्केट दैट यू कैन फिल, दैट इज आल्सो लेस रिस्की। मतलब आप कोई मार्केट में गैप है,
जैसे मैंने अभी बताया कि पहले डोर टू डोर सर्विसेज नहीं थी, तो क्या हुआ, वो गैप थी पूरी हो गई। तो जिस लोगों को बाहर जाने के लिए मुश्किल है, तो दे कैन इजीली गेट द थिंग्स एट होम। An interest or hobby that you can turn into a business possibility part time at first and using known context, right? ये सबसे अच्छा तरीका है आपके आइडिया टू वेंचर में कन्वर्ट करने का। आपका इंटरेस्ट है, आपकी हॉबी है, मतलब आप दूसरा कोई टॉपिक लेने की जरूरत नहीं है। व्हाट यू नीड टू टेक, आपके इंटरेस्ट और हॉबी है जिसको आप बिजनेस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। देखो ये सोनल बेन खाखरा वाला है, तो खाखरा उनके अच्छे बनते थे, उनके फैमिली मेंबर्स ने, उनके रिलेटिव्स ने, उनके फ्रेंड्स ने बोला होगा बहुत अच्छे बनाते हो, तो उन्होंने क्या किया, वो खाखरा बनाने की हॉबी को किसमें कन्वर्ट कर दिया, बिजनेस में। आप देखो उनकी ब्रांच पे ब्रांच है। आप विपुल दुधिया ले लो, विपुल दुधिया का एग्जांपल, स्वीट्स बनाते थे, राइट? आज उनकी अप्रोक्सीमेटली 10 से ज्यादा ब्रांच है अहमदाबाद में। तो व्हाट इज दिस, तो आपकी हॉबी है या इंटरेस्ट है, उसको आप क्या कर रहे हो, आइडिया में, आइडिया को वेंचर में कन्वर्ट कर रहे हो, राइट? इसमें बस आपको ध्यान ही रखना है, मैंने जैसे बताया, सपोर्ट ऑफ योर फैमिली इज मस्ट, राइट? नाउ लेट अस सी हाउ कैन यू टेस्ट योर आइडिया। आप अपने आइडिया को टेस्ट कैसे कर सकते हो? तो सबसे पहले आपको करना है गेट फीडबैक, बाउंस योर आइडिया ऑफ अदर्स, प्रेफरेबली दोस्त विथ सम कॉमर्शियल एक्सपीरियंस। तो जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया सोनल बेन खाखरा वाला या ढोकला वाला जो भी है, तो उन्होंने क्या किया होगा, फ्रेंड्स, फैमिली, बैंक, बिजनेस एडवाइजर्स, तो ये सारे लोगों को बात तो की होगी ना, क्योंकि अगर उनको एंटरप्राइज बनानी है तो लोन तो लेनी पड़ेगी, तो बैंक वालों को बताना पड़ेगा कि मैं ऐसा बना रही हूँ, तो मुझे मिल सकता है क्या। या तो अगर कोई बिजनेस एडवाइजर है जो फूड प्रोडक्ट्स में या कहीं पे भी हो, उनको बताना पड़ेगा, राइट? सो फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेस्ट योर आइडिया। मतलब आपको आइडिया आया तो आपको उसका फीडबैक लेना है, लोगों को बात करनी है। हम क्या करते हैं, आइडिया आया, शाम तक वो क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, वेपोराइज हो जाता है या इवोपरेट हो जाता है ना। Second, remember above all, there has to be a market and an end customer who will pay real money for your product or service. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपने आइडिया लिया, उसको कन्वर्ट भी किया, लेकिन क्या उसको लेने वाला एंड कंज्यूमर, एंड पर्सन कौन है, कस्टमर है, और अच्छा है, तो वो फ्री में नहीं, उसको आपको कुछ पे करेगा, वेदर इट इज प्रोडक्ट और सर्विस, राइट? तो अगर ये है तो आपका आइडिया टेस्ट में पास होगा। तीसरा पॉइंट है, आइडेंटिफाई एंड वीकनेसेस इन योर प्लान्स एंड कंसीडर द बेस्ट स्ट्रेटेजी टू ओवरकम देम। मैं सबसे लास्ट आपको सिखाऊंगा स्वॉट एनालिसिस, आपको शायद बता भी होगा, एज वेल एज हमें प्रायोरिटी कैसे निकालनी है वो हम बात करेंगे। तो ये आपको सॉल्व करने के लिए काम आएगा, आपकी वीकनेसेस को, राइट? And beware product infatuation. It seems a good idea. You think people are bound to buy it, but they don't. आप सोच लेते हो कि अभी ये तो खरीद लेंगे, बट शायद ना भी खरीदे, राइट? मतलब आप अपने पैसे इन्वेस्ट करते ही जाओगे, लेकिन सामने कोई परचेज ही नहीं करेगा, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसकी नीड क्या है, उसकी नीड है कि नहीं, राइट? आपने सोच लिया वैसा नहीं चलेगा। तो मैंने आगे भी बताया, वापस बता रहा हूं, पेन। Ideas can start with solving problems, solving point of pain. मान लो अभी हम कहते हैं कि मध्य प्रदेश या राजस्थान में समर में पानी होता ही नहीं है, तो एक पेन है, क्या उसके लिए कुछ करेंगे हम, राइट? सो आपको वो सोचना है, राइट? टू नोटिस इनएफिशिएंसी, इनकन्वीनियंसेस एंड अदर फॉर्म्स ऑफ पॉइंट ऑफ पेन एंड यूज दिस टू बिल्ड न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अगर आपने अपना पेन देख लिया, मैंने बोला ना, आपके घर में से नल में से पानी टपक रहा है, वो पेन है, कितना पानी वेस्ट हो रहा है, किसने काउंट नहीं किया, राइट? दूसरा, हम बहुत सारा पानी से नहाते हैं, तो क्या करना चाहिए, तो ये सारे क्या है, अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन उसको बिजनेस में कन्वर्ट करना भी आना चाहिए। तो पेन का लिस्ट बनाओ, कितने प्रॉब्लम्स है उसका लिस्ट बनाओ, मैं आगे उस प्रोसेस पे आ रहा हूं, लेट अस सी। So that's why idea starts with solving problems. So any problems are big opportunities. No problems, no solutions and no reasons for firms to exist. अगर आप प्रॉब्लम सॉल्वर ही नहीं हो तो आप कोई फॉर्म बना ही नहीं सकते, राइट? मतलब ये विनोद खोसला जी ने बहुत अच्छी तरह बताया है, ही इज द ओनर ऑफ सन माइक्रो सिस्टम,
नो वन पेज यू टू सॉल्व अ नॉन एग्जिस्ट प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम है ही नहीं उसके लिए आपको कौन कोई पे करेगा, है ना। जिसका एग्जांपल आप देख सकते हो, देखो लेविस के जीन्स आता है, तो प्रॉब्लम क्या पकड़ा उन्होंने, माइनिंग वर्कर्स के कपड़े, राइट, जल्दी से बहुत खराब हो जाते थे और यूजलेस हो जाते थे, इसलिए जीन्स आया मार्केट में जो क्या था, लॉन्ग लाइफ वाला है, राइट, गंदा होगा साफ कर लोगे आप इजीली। तो यही चीज है कि लेविस ने क्या किया, प्रॉब्लम पकड़ा, पेन पकड़ा, और उस पेन पे से क्या बनाया, प्रोडक्ट बनाई नहीं। सेम वे आप देखो अभी जो पिज्जा वाले आते हैं, तो क्या प्रॉब्लम थे उसमें, पिज्जा अराइव्स लेट, पिज्जा अराइव्स कोल्ड, font takes too long to be answered, order taken is incomprehensible, pizza taste of the packaging। तो ये सारे प्रॉब्लम्स थे, पॉइंट ऑफ पेन ऑफ कस्टमर, राइट। तो अभी आप देखो जितने भी ब्रांडेड पिज्जा आते हैं वो क्या कर लिया उन्होंने, अलग अलग लोकेशन पे ब्रांचेस बना ली, फ्रेंचाइजीज बना ली, तो क्या होगा, डिस्टेंस जल्दी कवर हो जाएगा, आराम से पहुंच पाएंगे, और आपको गारंटी भी दी थी कि आधे घंटे में नहीं पहुंचेंगे तो पैसे वापस, राइट, या तो फ्री में, राइट। मैनेजमेंट का उनको इश्यू है तो वो भी वो सॉल्व करेंगे, लेबर इज एक्सपेंसिव एंड अनरिलायबल, क्योंकि देखो किसी ने सीख लिया फिर अपना खुद का प्रोडक्ट बनाने लगेगा। अभी ये तो बहुत नया ट्रेंड निकला है कि अगर आपने 2-3 लोगों को अपने पास रखा आपके टीम में, अगर उन्होंने आपका बिजनेस प्लान समझ लिया, सीख लिया, तो खुद का अपना बना लेते हैं। ये जबरदस्त अभी एक बहुत बड़ा कहता हूँ ना, कंपटीशन के लिए बहुत डेंजरस है, राइट। It is difficult to schedule backing with deliveries and packaging is made with low quality of paper। तो दोनों के प्रॉब्लम्स है, कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू देखो और अगर जो प्रोड्यूसर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू देखो, तो उसको वन बाय वन ओवरकम करेंगे तो क्या हो जाएगा, इट इज अपॉर्चुनिटी। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हाउ टू जनरेट आइडिया। तो बहुत बेसिक चीज है, प्रॉब्लम टू प्लान, प्लान टू सॉल्यूशन। प्रॉब्लम डिस्कवर करो, उसको डिफाइन करो प्रॉपरली। मैं इसमें और फोकस करूंगा, मैंने बहुत सारे इसके स्लाइड्स बनाए हैं, वी विल डिस्कस इन डिटेल, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही है। अगर आपको बिजनेसमैन बनना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, लोग यही चीज नहीं करते, किसी ने बताया कर लिया, फेल हो गए, फिर वापस बैठ जाएंगे, तो ऐसा नहीं करना है। इफ यू गो थ्रू दिस मेथड, पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो प्रॉब्लम को डिस्कवर करो, उसको डिफाइन करो, उसको डेवलप करो, प्लान बनाओ कि कैसे सॉल्व करेंगे, और फिर सॉल्यूशन को डिलीवर करो, राइट। लेट अस अंडरस्टैंड इन डिटेल, डिस्कवर, डिफाइन, डेवलप, डिलीवर। तो जो हमने आगे भी देखा पिज्जा के केस में, चैलेंज को डिस्कवर करो, राइट। तो उसमें क्या होगा, लर्नर एंड स्टेक होल्डर ड्राइवन डिजाइन रिसर्च होगा, जो रिसर्च पे ही जाएगा, क्योंकि जब तक रिसर्च नहीं करोगे यू विल कैन नॉट डिस्कवर। देन जो आगे मैंने क्रिएटिविटी के अंदर पॉइंट्स बताए थे, इनसाइट एंड डिफाइन द प्रॉब्लम। आपको डिफाइन करना है कि रियल प्रॉब्लम क्या है। ओवरऑल तो क्लियर है, बट एक रियल प्रॉब्लम को डिफाइन करना पड़ेगा, राइट। तो दैट इज कॉल्ड चैलेंज डेफिनेशन, राइट, जिसमें आपको यूजर एम्पैथी को भी ऐड करना है। मतलब यूजर एम्पैथी को कैसे ऐड करोगे, आप स्टेक होल्डर से मिलो, उनके इंटरव्यूज लो, उनके फीडबैक्स लो, एनालिसिस करो, राइट। आपको पता होगा मार्केट में रिसर्च होता है, इसीलिए होता है, उनकी प्रोडक्ट क्यों कम जाती है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कैसे डेवलप करोगे, तो डेवलप पॉसिबल लर्निंग सॉल्यूशंस थ्रू इटरेशन। व्हाट इज दैट, आइडिया जनरेशन, जिस पे हम बात कर रहे हैं अभी। तो आपको पहले ऑन पेपर स्केच करना पड़ेगा, फिर स्टोरी बोर्डिंग करना पड़ेगा, एंड देन सिनारियो मैपिंग करना पड़ेगा, और बहुत टीम को, पूरा टीम को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, और टीम के आइडियाज लेके फिर एक रिजल्ट पे आना पड़ेगा। हम उस पे आते हैं, right? So when you develop this idea, then improve and optimize final learner experience। मतलब टेस्टिंग करना है आपको, यूजेबिलिटी टेस्टिंग, राइट, यूजर ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यूज। मतलब वापस अपने जो प्रॉब्लम थे आप वापस टेस्ट कराओ, चेक कराओ कि ये सॉल्व हुए कि नहीं हुए, राइट। तो बिफोर दैट, मतलब वो करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक अपने टीम के लिए एक प्रोटोटाइपिंग बनाना पड़ेगा। मतलब आप इंडिविजुअली थोड़े एक छोटे से पायलट प्लान जिसको कहते हैं, आप प्रोटोटाइपिंग करोगे, प्रोटोटाइपिंग का टेस्टिंग करोगे, और फिर वो फाइनली सक्सेसफुल होता है तो उसको इंप्लीमेंट करोगे। तो यू कैन थिंक हियर, रिसर्च, यूजर एम्पैथी, चैलेंज डेफिनेशन, आइडिया जनरेशन, प्रोटोटाइपिंग, टेस्टिंग एंड इंप्लीमेंटेशन। ये सीक्वेंशियल प्रोसेस है, राइट।
नाउ व्हाट इज आइडिएशन और आइडिया जनरेशन? तो देखो ये हमारे सबके पास, मैंने जो बोला है ना, सबसे पहला पिक्चर में बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, हमारे पास वही ब्रेन है जो सबके पास है। तो हमारे पास बहुत सारे आइडियाज आते हैं, रैंडम आइडियाज होते हैं, अनक्लियर होते हैं, ब्रॉड होते हैं, जेनरिक होते हैं। तो हमें करना क्या है? तो उसमें मैंने लिखा था कि जैसा इनपुट दोगे वैसा आउटपुट आएगा। तो आप उसको प्रॉपर वे से सिलेक्टेड बनाओ, प्लान करो, क्लियर बनाओ, कंसाइज बनाओ, स्पेसिफिक बनाओ, देन इट विल हेल्प यू टू कन्वर्ट इनटू व्हाट रियलिटी। ये वापस एक और प्रोसेस है डाइवर्ज कन्वर्ज का, कि एक्सप्लोर, एम्पथाइज, डिफाइन, आइडिएट, प्रोटोटाइप, टेस्ट, जो मैंने अभी बताया, राइट? मतलब आप प्रॉब्लम का एक्सप्लोर करोगे, देन यू टॉक टू पीपल, दैट इज व्हाट अगेन एम्पैथी। डिफाइन करो रियल प्रॉब्लम, आइडिया लगाओ उस पे, प्रोटोटाइप बनाओ, टेस्टिंग करो, इंप्लीमेंट करो, राइट? सो दिस आर द अनदर वे टू अंडरस्टैंड इट, राइट? ये पूरा साइकिल है। तो यहाँ पे इट इज अ कंटिन्यूस साइकिल। तो देखो एम्पथाइज किया तो लर्न अबाउट यूजर थ्रू टेस्टिंग, अगेन करो। डिफाइन किया, टेस्ट रिवील्स इनसाइट एंड रिडिफाइन द प्रॉब्लम। अगर वापस आपने प्रोटोटाइप बनाया, फेल गया, तो वापस इस प्रोसेस पे आ जाओ, वापस लोगों को पूछो, वापस डिफाइन कर, रीडिफाइन करो, राइट? वापस नए आइडिया बनाओ। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। वापस प्रोटोटाइप बनाओ, वापस टेस्ट करो, जब तक सक्सेसफुल ना हो जाओ। सो बेसिकली दिस इज what we can say summary of that, कि हाइपोथेसिस ऑफ प्रॉब्लम बनाना है, प्रोटोटाइप बनाना है, एंड ट्राई एंड रिटर्न टू रिफॉर्मुलेट इट। मतलब वापस ट्राई करो, रिफॉर्मुलेट करो, रिटर्न करो, राइट? सो वी इन्वेस्टिगेट व्हाट आर द अनमेट नीड्स। मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, अगर बिजनेस में जाना है, फाइंड आउट अनमेट नीड्स ऑफ द पीपल और कस्टमर, एक्सप्लोर पॉसिबिलिटीज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स, राइट? प्रोटोटाइप में क्या करना है? मस्ट बी टेस्टेड बाय अ प्रोटोटाइप टू सी इफ आवर सॉल्यूशन एक्चुअली solve the problems that we are called to solve or not, right? And if we solve the problem, then go for feedback and again check whether it is meeting with the need or not, right? तो ये आई एम नॉट गोइंग इन डिस्कस, ये पूरा समरी है जो अभी तक हमने डिस्कस किया। प्रॉब्लम रीस्टेटमेंट करना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है, ब्रेन राइटिंग करना है, स्टोरी बोर्डिंग करना है, स्कैम्पर जिसके बारे में मैं नेक्स्ट स्लाइड में बता रहा हूँ, एनालॉगी पे आना है, ट्रांसफर फ्रॉम अदर कॉन्टेक्स्ट देखना है, ड्राइंग द प्रॉब्लम, एंड देन वी हैव टू यूज इट एज अ प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप करने से पहले ये पूरी प्रोसेस करनी है, राइट? तो मैं अभी यहाँ पे सिर्फ फोकस कराऊंगा स्कैम्पर पे, क्योंकि यही आपको बताएगा कि आइडिया को अलग अलग किस वे में हमें सोचना है और उसको अप्लाई करना है। तो व्हाट इज स्कैम्पर? इट्स नथिंग बट अ फुल फॉर्म ऑफ फ्यू वर्ड्स, SCAMPER। सब्स्टिट्यूट, अगर आपका फेल जा रहा है सब्स्टिट्यूट करो, या किसी से कंबाइन करो, एडेप्ट करो किसी का, मॉडिफाई करो, पुट टू अनदर यूज, एलिमिनेट करो या रिवर्स करो। देखो ये सबसे इजी वे है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्कैम्पर। आपके फेलियर होने के चांसेस क्या होंगे? तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, तो या तो सब्स्टिट्यूट करो, या उसको किसी के साथ कंबाइन करो, या कहीं से एडेप्ट करो कोई और मेथड, या मॉडिफाइड करो उसी को, या उसका दूसरा एप्लीकेशन ढूंढो, या उसको एलिमिनेट ही कर दो, या फिर पूरा रिवर्स थिंकिंग कहते हैं, रिवर्स थिंकिंग करो। सो अगर आपने ये स्कैम्पर आ गया आपको, तो आप कोई भी बिजनेस शुरू भी करोगे, यू विल नेवर हैव एनी प्रॉब्लम। नाउ लोकेटिंग अ बिजनेस आइडिया। अभी हम बिजनेस पे आ रहे हैं, क्योंकि जैसे टाइटल हमारा आइडिया टू वेंचर है, तो आइडिया कैसे जनरेट करना है मैंने बता दिया। नाउ बिजनेस आइडिया कैसे बनाना है, तो उसके लिए डेफिनेटली वी नीड टू गो फॉर WH। हम छोटे से तब से हम WH है ना, व्हाट, वेयर, वो, ये सब हम पढ़ रहे थे। यहाँ पे एक और ऐड किया है प्रोसेस के लिए, हाउ, राइट? तो प्रोडक्ट्स के लिए व्हाट, मतलब दिस इज इंक्रीमेंटल, सब्सटेंशियल एंड रेडिकल। तो कस्टमर कौन होंगे आपके, दैट इज वो, राइट? चैनल्स कौन सी होगी आपकी, डिस्ट्रीब्यूशन की या जो भी है, तो वेयर, कहां होगी? प्रोडक्ट्स कौन सी होगी और कैसे प्रोसेस करोगे? तो बिजनेस आइडिया के लिए ये 4 मेन पिलर है। आपके कस्टमर कौन होंगे, आप कौन सी प्रोडक्ट बनाओगे, आपकी प्रोसेस कैसे होगी, और उसको डिस्ट्रीब्यूट, कस्टमर के पास पहुंचाने के लिए डिस्ट्रीब्यूट क्या करोगे। मतलब देखो वापस, यू नीड प्लेटफॉर्म, you need solutions, you need customer experiences, you need revenue model,
You need value chain, you need logistics or supply chain, you need networking, you need R&D. तो जब आप ये पोजीशन पे आओगे, then only you can say your business is successful business, right? तो रेडिकल मोड से सब्सटेंशियल मोड, सब्सटेंशियल से इंक्रीमेंटल मोड पे आएगा. तो अगर आपको बताएं नहीं कहां से शुरू करें, right? If you don't know where to start, begin with your unanswered questions. ये जो स्टूडेंट है उनके लिए स्पेसिफिकली मैं बोल रहा हूं कि अगर आपको बताएं नहीं कहां से शुरू करना है तो ये सेम WH क्वेश्चन को यूज करना है, और ये फिक्स क्वेश्चन है. इतने क्वेश्चन के आंसर निकाल पाओगे तो यू कैन स्टार्ट योर वर्क. पहला है हु आर आवर यूजर्स, राइट? हमारे यूजर्स कौन होंगे? व्हाट्स देयर स्टोरी, राइट? व्हाट्स देयर एक्सपीरियंसेस, व्हाट इन्फ्लुएंसेस देयर एक्सपीरियंस. तो तीनों का मतलब क्या है? मान लो अगेन जियो ने जब शुरू किया होगा, उन्होंने यही किया होगा ना, ऑलरेडी मार्केट में आइडिया थे, वोडाफोन थे, एयरटेल था, राइट? तो उन्होंने क्या किया होगा? व्हाट आर आवर यूजर्स, व्हाट इज देयर स्टोरी. तो उनके प्रॉब्लम ढूंढे होंगे कि भी महंगा है या जो भी है, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा नेटवर्क का या जो भी इश्यू है, एंड व्हाट इन्फ्लुएंसेस देयर एक्सपीरियंसेस. तो ऐसा कौन सा पार्ट है जहां पे इन्फ्लुएंस करके उनका हम अपने तरफ कन्वर्ट कर सकते हैं? तो ये हो गया हु आर आवर यूजर्स. व्हाट्स देयर कंटेक्स्ट, राइट? तो ये किसके लिए? हु डू दे वर्क विथ, उनका मतलब एनवायरनमेंट क्या है, व्हाट प्रोसेसेस आर दे पार्ट ऑफ, व्हाट्स एक्सपेक्टेड ऑफ देम, राइट? तो ये आगे व्हाट्स, उनके कंटेक्स्ट में जाना है. मतलब आप अगर आपको प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए यू हैव टू गो फॉर दिस क्वेश्चंस. देन इफ यू अगेन गो फॉर नीड्स, तो व्हाट प्रॉब्लम्स आर दे सॉल्विंग, हाउ डू दे डिफाइन सक्सेस, and what do they stand to gain or lose, right? And what's their feedback, how do they feel about us, what's working and what isn't, and what ideas do they have in us, right? मतलब क्या बात है सिंपल सी. So what ideas do they have for us? तो ये चारों पार्ट क्यों अलग अलग है? तो सबसे पहले शुरू करने के लिए ये आपका यूजर को स्टडी करना है. जब आप प्रोडक्शन कर रहे हो या कुछ सर्विसेज शुरू कर रहे हो तब आपको इस पार्ट में जाना है. फिर जब बना लोगे तब आपको प्रॉब्लम स्टडी करना है, मतलब टेस्ट करना है, एनालिसिस करना है, और उसके लिए आपको क्या लेना है? फीडबैक लेना है, राइट? नाउ सो दैट्स व्हाई अगेन WWW, this is who, what and wow. तो ये सिंपल सॉल्यूशन है. Who are your users? Make it clear who you aim to serve and who you don't. ये क्लियर कट होना चाहिए कि आप किसको सर्व करना चाहते हो, आपके कंज्यूमर्स कौन होंगे. What's the need they are trying to meet? उनकी कौन सी अनमेट नीड को आप कन्वर्ट करोगे आपके उसमें. टर्न यूजर्स नीड्स इनटू प्रोजेक्ट गोल्स, राइट? तो यूजर की नीड को है उसको आपको प्रोजेक्ट गोल बना दो. और ये वाव जो है वो कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. हाउ विल यू डिफरेंशिएट फ्रॉम कंपटीटर्स, हाउ विल यू मेजर सक्सेस. तो वाव कब आएगा? जब आप कंपटीटर से किस तरह से आगे बढ़ रहे हो तभी वाव आएगा, राइट? दिस इज एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट कंपनीज. यू कैन स्टार्ट विद याहू. देखो याहू को अभी ऑलरेडी गूगल ने क्या कर लिया? ओवरकम कर लिया. इन्फोसिस स्टिल ऑन द प्रोसेसेस पे बेस्ड है, राइट? डेल है लॉजिस्टिक में, आप देख सकते हो. नेटवर्किंग के लिए आपका डेटा है अभी स्काइप है, राइट? गूगल, देन योर ईबे. यू कैन टेक लॉट मेनी एग्जांपल्स. जो मैंने आगे आपको जो बताया था कि WHO, हु, व्हाट, वेयर एंड हाउ, उसके एग्जांपल थोड़े बताए हैं, तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड इट. नाउ कितने बिजनेस आइडिया हो सकते हैं? तो पहला प्रोडक्ट, तो आप नई प्रोडक्ट या नई सर्विस बनाओ. देखो कुछ चीजें बार बार आएगी, क्यों? क्योंकि उसको अलग अलग वे से हमने बताया यहाँ. सॉल्यूशंस, तो एंड टू एंड कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो. कस्टमर, तो जिसकी कोई अनमेट नीड हो उस कस्टमर का आप नया सेगमेंट बना सकते हो, राइट? जैसे मान लो अभी आजकल क्या है, बहुत सारे जो सन डॉटर है वो USA या फॉरेन चले जाते हैं, तो उनके पेरेंट्स इंडिया में रहते हैं, तो उनकी केयर करने के लिए बहुत लोग होते नहीं है. तो पूरा एक नया सेगमेंट है कस्टमर का
कि ओल्ड एज पीपल की केयर सेंटर बना दो आप, या उनकी केयर करने के लिए पर्सनल सर्विसेज दो। तो एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। नेक्स्ट है कस्टमर एक्सपीरियंस पे आप नया बिजनेस लोकेट कर सकते हो, राइट। रेवेन्यू मॉडल चेंज हाउ यू गेट पेड, प्रोसेसेस इनोवेट ऑन ऑपरेटिंग प्रोसेसेस, वैल्यू चेंज पोजीशन और स्कोप ऑफ पार्टिसिपेशन, राइट। लॉजिस्टिक सप्लाई चेन, चैनल्स, R&D, ये सारे जो मैंने आगे बताया है उसी के डिटेलिंग बताई है यहाँ पे। तो बिजनेस आइडिया लोकेट करने के लिए जो हमने ये सारे पॉइंट देखे, प्लेटफॉर्म, सॉल्यूशन, कस्टमर एक्सप्लोर, रेवेन्यू मॉडल, उन्हीं के बारे में यहाँ पे आपको डिटेल में बताया है, राइट। देयर आर अनदर टेक्निक्स टू स्क्रीन योर आइडिया। स्क्रीनिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो स्क्रीनिंग में क्या क्या इन्वॉल्व करना पड़ेगा? इंडस्ट्री एंड मार्केट, इकोनॉमिक्स, हार्वेस्ट इश्यू, कंपेटिटिव एडवांटेज इश्यू, मैनेजमेंट टीम, फटल फ्लोस, पर्सनल क्राइटेरिया, स्ट्रेटेजी डिफरेंशिएशन, ये सारा आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो व्हाट इज दिस? तो सिस्टमैटिक अप्रोच बट अवॉइड द पैरालिसिस विथ एनालिसिस अप्रोच। क्योंकि स्क्रीनिंग जब तक नहीं करोगे, छणावट कહીએ ને આપણે, છણાવટ કે ભાઈ તમે જે કર્યું એમાં સાચું કેટલું થયું અને એમાં કેટલા પ્રોબ્લેમ્સ હજી આવશે અને એને કેના સોલ્વ કરવા. સો ધેટ્સ વાય સ્ક્રીનિંગ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. એમાં સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ બે જ છે, ફાઇનાન્શિયલ અને માર્કેટિંગ સ્ક્રીનિંગ, રાઈટ. સો ફોર ધેટ न्यू कॉन्सेप्ट केम इनटू द पिक्चर जिसका नाम है डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस. क्या नाम है? डिजाइन थिंकिंग. ये कुछ ज्यादा नया नहीं है, बट इसको एक अलग वे से, अलग नजरिए से हम देखेंगे. तो उसमें एक लूप बनाया गया है 3 चीजों का, और वो है ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट एंड मेक. ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट, मेक. बस आपको ये आगे अभी तक जो पढ़ा हमने उसको 3 वर्ड में हम कन्वर्ट करें तो क्या करना है, आपके आइडिया को आपने जो भी कन्वर्ट किया प्रोडक्ट में या सर्विसेज में, उसको ऑब्जर्व करो, रिफ्लेक्ट करो, और अगेन रीमेक करो, या पहली बार कर रहे हो तो मेक करो, राइट. सो व्हेन ऑल एल्स फेल्स जस्ट स्टार्ट विथ रिफ्लेक्ट. ऑब्जर्व करना है, उसी से पता चलेगा कि फेल गया, तो आपको और कुछ नहीं करना है, रिफ्लेक्ट करना है. और रिफ्लेक्ट के लिए मैंने आगे जो आपको प्रोसेस बताई वो यूज करनी है, राइट. सो आस्क योरसेल्फ एंड योर टीम दिस क्वेश्चंस इफ यू आर फेल. Who are our users? देखो वापस आया. Who are our stakeholders? How do we define success? हमारे लिए सक्सेस क्या है? What did we observe or make? What's working and what's not? What is our plan? What's in our roadmap? तो ये redefine. That's why it is called design thinking, है ना? So and then you have to define an experience. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी कुछ बना रहे हो, सर्विस हो या प्रोडक्ट हो, उसके लिए बार बार लोगों को मिलके उनके एक्सपीरियंस को आपको समझना पड़ेगा. So when you start applying design thinking to your work, the first question that comes to your mind is when do we apply it and to what, right? तो यहीं पे क्या आएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ यूजर एक्सपीरियंस कम्स इन, जो आपको फीडबैक देगा, जो मैंने आगे भी बताया कि फीडबैक का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. यू टेक एग्जाम्पल ऑफ, हाँ, सोनल बेन ढोकला वाला एंड इंदू बेन खाखरा वाला, राइट. ओके. मोर इम्पोर्टेंटली पीपल हैव एक्सपीरियंस ओवर टाइम एज अ जर्नी, and it is important to consider the context in which they experience something, what happened before and what happened after. जो मैंने आपको बताया कि आप जियो यूज करना शुरू कर दिया तो अभी आप इजीली कंपेयर करोगे. सेम अगर आप दुबई घूम के आ गए, आपको इंडिया के बारे में कंपैरिजन शुरू हो जाएगा. तो ये वही है कि पहले क्या था और अभी क्या है. तो इसके लिए सेम आपको आगे जो किया वही करना, सिर्फ अलग वर्ड्स दिए हैं. Stating the problem, again collecting the information, abstracting the information, building the model, manipulating the model. तो जो हमने आगे देखा ना, ये वही है. तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है, जनरेशन ऑफ आइडिया में आपको एंड प्रोडक्ट क्या होगी, यू हैव टू गिव सम फॉर्म टू योर आइडियाज. मतलब ऐसा नहीं है प्रोटोटाइप, तो फॉर्म हम इस पे आगे कहाँ आ रहे हैं, प्रोटोटाइपिंग पे आ रहे हैं कि आप सिर्फ पेपर पे लिखोगे नहीं चलेगा, यू नीड टू क्रिएट प्रोटोटाइप, राइट. आपको क्या बनाना पड़ेगा, प्रोटोटाइप. नाउ तो यहां तक हम समझ गए. अभी हमें एज अ बिजनेसमैन सोचना है कि रियलिटी चेक क्या करना है, कि अभी बिजनेस, चलो हमने सब कुछ कर लिया, आइडिएशन कर लिया, मतलब आइडिया जनरेट हो गया, हमने प्रोटोटाइप बना लिया, हमने कोई एक अनमेट नीड को फुलफिल कर लिया. तो अभी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए और कौन से फैक्टर्स समझने पड़ेंगे, राइट. तो उसके लिए देखो क्या लोग मानते हैं कि भाई 70% ऑफ स्टार्टअप्स क्लोज डाउन विद इन 3 years.
But remember, not all closures are because of business failure. People often sell businesses or take up paid employment, right? कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे आप देखो इंस्टाग्राम पहले किसका था अभी किसका है, व्हाट्सअप पहले किसका था अभी किसका है. तो ये भी है कि अपना आइडिया आया, अच्छा बिजनेस है और ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है, व्हाट दे विल डू, दे विल सेल देयर बिजनेस. तो फेलियर भी है, लेकिन सामने अगर आप उसको सेल करके अच्छा अर्निंग कर सकते हो तो वो भी है. Running your own business provides you with great learning experience in terms of लीडरशिप एंड टीम वर्क. अगर आप ये कर रहे हो तो ये आपके अंदर ऑटोमेटिक आ जाएगा. लीडरशिप एंड टीम वर्क, कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग स्किल, कॉमर्शियल अवेयरनेस, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशंस, एडेप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, रेजिलियंस एंड इंडिपेंडेंस. तो बिजनेस शुरू करने से पहले क्या आपके पास ये सारी क्वालिटी है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो डेवलप करनी पड़ेगी. देन ओनली यू कैन बी अ गुड businessman and businesswoman also, right? So business is success depends on what? सबसे पहले आपको सेल्फ मोटिवेटेड बनना पड़ेगा. Being aware of your own ability, skills and capabilities. आपको अपने बारे में जानना पड़ेगा ज्यादा, right? जो इसलिए मैंने बताया ना, ask, attitude, skill and knowledge, ये तीनों होने चाहिए. Realistically thinking through the business idea and startup options, ये आपको देखना है. And if you are starting straight from university, जैसे आप अभी शुरू कर रहे हो, perhaps at the outset not having too complex a business model, तो आपका मॉडल बहुत सिंपल और इजी होना चाहिए. तो इसके लिए क्या है जो मैंने अभी बताया ना, 4 चीजें, मोटिवेशन, एबिलिटी, आइडिया एंड रिसोर्सेस. तो व्हाट यू नीड फॉर सक्सेस, तो वही चीज बार बार आएगी लेकिन अलग वे से आएगी, क्योंकि अलग अलग मॉडल है इसके. तो इसको MAIR, मेयर मॉडल कहते हैं. रिसर्च द मार्केट एंड प्लान मार्केटिंग, गेदर टीम एंड प्लान ऑपरेशंस, एक्सप्लोर फंडिंग एंड प्लान फाइनेंसिस, टेक लॉट्स ऑफ एडवाइस एंड नेटवर्क. ये सारा चाहिए आपको सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के लिए, राइट? तो इसके लिए आपको अपना बिजनेस प्लान लिखना पड़ेगा. हम इसलिए पे आ रहे हैं नेक्स्ट बिजनेस प्लान पे. एंड नेगोशिएट योरसेल्फ इनटू business. To be successful in business, you usually have to offer something that is better in terms of quality, process, delivery, service, and or cheaper, or just you and your team being plain nicer to deal with than the competition. तो इसका मतलब ये सिंपल है, सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के लिए आपको बाकी सबसे कुछ अलग, कुछ हटके, कुछ यूनिक देना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं ना USP, यूनिक सेल्स पॉइंट, राइट? तो ये USP बनानी पड़ेगी. तो उसके लिए आपको अपने आप कुछ क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे, और मैंने 1-2 साइट्स बताई है यहाँ पे, यू कैन गो थ्रू इट, तो यू विल गेट आइडिया. तो पहला तो हाउ कमिटेड आर यू, व्हाट आर योर ड्राइविंग फोर्सेस टू स्टार्ट अ बिजनेस, आर यू प्रिपेयर्ड टू वर्क हार्ड एंड टू टेक रिस्क, what are your goals, does self employment match with personal or family needs, right? ये 9 to 5 की जॉब नहीं है, तो ये देखना है आपको, क्योंकि 24 घंटे आपका ही है. have you the right skills, मैंने आगे ही बताया, you must have all the skills. नहीं है तो डेवलप करो, बाद में शुरू करो. do you know your own strength or weaknesses, just do your SWOT analysis. are you really good at the core skill required, मैं बार बार इस पे आ रहा हूँ. Have you a feasible idea or can you find one, right? तो देखो ये howweearn.com करके वेबसाइट है, you just go through it, right? Does the idea fill a gap in the market, will it sell, क्या आप बेच पाओगे उसको? Can you find premises, tools, suppliers, staff required? Have you a funding need? Can you survive initially on what may be a low income? फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग ना भी हो या हो, ये सोच के रखना पड़ेगा. कैन यू बिल्ड नेटवर्क्स फॉर सपोर्ट एंड डेवलपमेंट? तो अगर ये सारे क्वेश्चन में से 70 to 80% क्वेश्चन के आंसर आपके पास पॉजिटिव है, डेफिनेटली यू कैन बी एन एंटरप्रेन्योर, यू कैन गो फॉर इट. देखो ये बहुत सारे बेस्ट एंटरप्रेन्योर्स के नाम है यहाँ पे. रिचर्ड ब्रेंसन आपको पता होगा, स्टेलियोज है, एलन सुगर है, अनीता रोडिक है, फिलिप ग्रीन है, राइट? दे आर द बेस्ट एंटरप्रेन्योर्स ऑफ द वर्ल्ड. सो व्हाट की स्किल डू यू थिंक दे ऑल हैव इन कॉमन?
तो एक ही बात यहाँ पे बताई है, स्पॉटिंग एन अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट। क्या है? मार्केट में से अपॉर्चुनिटी को उठा लो। मैंने अभी एग्जांपल दिया बैजू का, यू जस्ट थिंक लाइक दैट, राइट? सो व्हाट इज एंटरप्रेन्योरिज्म? Entrepreneurism is nothing but an entrepreneur is someone who has the ability to recognize or grasp an opportunity and the ability, skill and commitment to manage risk in order to achieve success. Do you have to be an entrepreneur to run your own business? No, not all business people are like Richard Branson or Stelios. Entrepreneurs tend to be involved in novel startups, new products or services, or new routes to market, and with fast growing businesses. They often switch sectors. तो आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि कौन सा सेक्टर है, कब स्विच करना है, तो ये सारी स्किल चाहिए. Most startups businesses are not novel or fast growing. They are plumbers, hairdressers, small retailers, web designers. आप देखो ये इंडिविजुअल पर्सन है, इनकी टीम नहीं है बहुत बड़ी, लेकिन आप बाद में देखना वो पूरे क्या करते हैं, हेयर ड्रेसर्स. आप देखो अभी इतने बड़े बड़े लोग सलून बनाने लगे हैं. प्लम्बर्स तो पूरी टीम बना ली उन्होंने. स्मॉल रिटेलर्स तो पूरा रिटेलर्स का चेन बना लिया. वेब डिजाइनर्स तो आप देखो नेट पे, यू विल गेट लॉट मेनी वेब डिजाइनर्स का पूरा एक फॉरम है ना. सो मोस्ट स्टार्टअप्स आर जस्ट अंडरटेकन बाय एंटरप्राइजिंग पीपल. तो जो मैंने आगे आपको बताया था, एंटरप्राइजिंग पीपल बनने के लिए आपके पास क्या क्या एटीट्यूड होने चाहिए, एट्रीब्यूट्स होने चाहिए. तो ऑलरेडी हम रिवीजन ही कर रहे हैं. इनिशिएटिव, फ्लेक्सिबिलिटी, टीम वर्क, लीडरशिप, हार्डवर्क, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, नेगोशिएशन skills, and planning and organization skills. You can do calculated risk, right? Calculated risk taking ability होनी चाहिए. Independence, desire to control one's own destiny, desire to achieve, right? तो अगर ये मैंने आपको बताया ये क्वालिटी है तो शुरू कर दो, नहीं है तो पहले क्वालिटी डेवलप करो, देन थिंक अबाउट टू गो इन एंटरप्रेन्योरशिप. तो अगेन एक ये बहुत अच्छी वेबसाइट है, potentialentrepreneur.ca/client. यहाँ पे 40 क्वेश्चन होते हैं जिसमें स्कोरिंग आना चाहिए आपका कुछ अच्छा सा. तो अगर ये आपको अच्छा स्कोर दे रहा है, then you believe कि you are having a potential to create your own business, right? So again I am repeating, www.potentialentrepreneur.ca/client. So let us do the outline sums, right? Nearly every new business needs some money for premises, equipment, vehicles, for stock, advertising, marketing, renter, lease payments, business rates, utility cost, transport cost, salary drawing, और maybe other staff cost. मतलब अभी हम फाइनेंस पे आ रहे हैं. So remember, sales are often slow to build up, and unless they are for cash, you might not get paid for 1, 2 or even 3 months. है ना? आपको पता होगा, आप देखना अच्छे अच्छे लोगों का आप अगर ऑटोबायोग्राफी स्टडी करोगे तो पता चलेगा जो लोग बेस्ट एंटरप्रेन्योर है ना, उन्होंने 3 महीने से लेके 3 साल तक कुछ कमाया नहीं होगा, या बहुत रिस्ट्रिक्टेड अपनी लाइफस्टाइल बनाई होगी, या बहुत डिफिकल्टी से अपनी लाइफ जी होगी, है ना, राइट? तो इसलिए ये सब दिमाग में रख के आपको एक बिजनेस प्लान बनाना है, राइट? So which will makes you think through the idea in some depth. It is a test to see if your idea will stand up to scrutiny. Usually essential if you want to borrow money. क्योंकि देखो जब तक बिजनेस प्लान नहीं बनाओगे आप पिचिंग नहीं कर पाओगे. What is pitching? You have to talk to investor, whether it is bank person or maybe any good what we can say, कोई भी इन्वेस्टर है, तो इन्वेस्टर को पिच करोगे तभी तो आपको पैसे मिलेंगे, क्योंकि सबके पास थोड़े पैसे होते हैं, आइडियाज होते हैं. So provides an ongoing reference point for when you are in business. तो आइडिया से प्रोटोटाइप पे आ गए, प्रोटोटाइप का टेस्टिंग हो गया, सब कुछ इम्प्लीमेंटेशन पे आ गया, उसके बाद की बात है कि आप एक बिजनेस प्लान बनाओ कि आपको कितने साल का एक टारगेट है, कितने लोग काम करेंगे, कितनी सैलरी दोगे, कितना कॉस्टिंग होगा, उसके लिए आपको कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या आएगा, क्योंकि जो भी इन्वेस्टर होगा उसको फोकस कहाँ होगा, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट पे, कि मुझे ROI कितना है, कितने टाइम में डबल होगा या कितने टाइम में क्या होगा, और ग्रोथ क्या है नेक्स्ट. तो ये आएगा बिजनेस प्लान के अंदर. तो उसके लिए थोड़ी टिप्स दे देता हूं मैं.
Before you start writing, think where you want to be in 3 to 5 years time. Outline your vision. इसलिए कहते हैं ना लोग विजन और मिशन दोनों स्टेटमेंट बनाते हैं पहले। तो आप देखना कोई भी बेस्ट कंपनी होगी, और अभी तो ये जो ISO उसकी वजह से तो सब कंपलसरी हो गया है कि यू मस्ट हैव योर विजन एंड मिशन स्टेटमेंट्स। तो आप सोचोगे 3 से 5 साल में आप कहाँ होंगे। एड्रेस इट टू द अप्रोप्रिएट ऑडियंस, जैसे मतलब इन्वेस्टर है, बी दैट फाइनेंशियल और टेक्निकल पर्सन। तो अब टेक्निकल एडवाइजर भी चाहिए, फाइनेंशियल एडवाइजर भी चाहिए, तो पहले उनसे बात करो, उनके से आउटपुट लो और फिर उसको इनपुट बना के एडिशन करके एडिट करके नया आपका पिचिंग बनाओ, क्योंकि इट मस्ट बी रीडेबल एंड अंडरस्टैंडेबल। Many people start with the back of an envelope approach and develop that into a marketing, funding, feasibility study and ultimately a full-blown business plan. तो back of an envelope approach भी एक है जो आप ज़्यादा study करना, because we are having short of time, right? Most important areas are management, sales generation and cash flow. Business के लिए तीनों पैरामीटर, आप कैसे मैनेज कर रहे हो आपके लोगों को, आपके चीजों को, सेल्स कैसे जनरेट कर रहे हो, एंड कैश फ्लो कैसा है आपका, राइट? तो मतलब ये नंबर गेम है ना। और बी क्लियर एंड कंसाइज बिटवीन 10 to 15 पेज, मैक्सिमम 20 पेज। आपका बिजनेस प्लान मैं तो बोल रहा हूँ 15 पेज का ही रखो, राइट? और उसमें सारे पैरामीटर्स, फ्यूचर प्लान्स, और मैंने जो बताया मेन क्या है, ROI, राइट? उसका प्लान पूरा करके आप प्रेजेंट करो। मतलब उसमें कौन से ब्रॉड एरिया आना चाहिए। जो 20 पेज या 15 पेज आप बना रहे हो तो आपका बिजनेस डिस्क्रिप्शन एंड विजन आ जाना चाहिए। आउटलाइन ऑफ योर टीम्स बैकग्राउंड, स्किल्स एंड एक्सपीरियंस, क्योंकि आपकी जो टीम है वही आपका पिलर है, तो उसके बैकग्राउंड क्या है, स्किल्स क्या और एक्सपीरियंसेस क्या है। आप प्रोडक्ट दे रहे हो या सर्विस दे रहे हो उसकी डिटेल्स बता दो। मार्केटिंग एनालिसिस इंक्लूडिंग कंपटीटर डिटेल्स एंड योर स्ट्रेटेजी, मतलब आप अगर मार्केट में नए हो तो आपके ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग आपके जो कंपटीटर है उनका पोजीशन और आप कैसे चेंज करोगे, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी। ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स क्या होगी, डिटेल्ड फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या होगी, एंड रिस्क इवेल्युएशन क्या होगा। ये सारे पॉइंट अगर आपने अंदर ऐड कर दिए हैं, कोई भी इन्वेस्टर होगा अच्छा सा, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर से हम मिले हैं और उनसे काफी सारे लोन भी ले सकते हैं या वो खुद पार्टनर बन सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट उसमें इन्वॉल्व किए तभी एक अच्छा सा बिजनेस प्लान बन के उसको हम आगे वेंचर में कन्वर्ट कर सकते हैं। All of the usually precised and in an executive summary which forms the first section of the completed plan. 8 पॉइंट, 8 पेज या 8 दूनी 16 पेज आप गिन सकते हो, राइट? न्यूमरस टेम्पलेट्स आर अवेलेबल ऑनलाइन फ्रॉम एजेंसीज एंड बैंक्स। मतलब कुछ लोगों का खुद का एक कंसल्टेंसी होता है, बैंक का भी खुद का एक होता है कि अगर लोन देनी है तो आप बिजनेस प्लान दे रहे हो, उसका टेम्पलेट होता है, यू फिल अप दैट, तो वो भी आप देख सकते हो आपके गाइडेंस के लिए। तो आप पहले बैंक में जाओ, पूछ लो कि भी गिव मी योर बिजनेस प्लान, मतलब बिजनेस लोन लेनी है तो क्या करना है, तो दे विल गिव आइडियाज कि आपका यही सारे पॉइंट्स होंगे उसमें भी, राइट? सो और कुछ पॉइंट्स मैं बताना चाहता हूं जो थोड़े बस लास्ट है। इफ यू नीड फंडिंग देन योर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस आर की, राइट? मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट इज द इन्वेस्टर मंत्र। आपका मैनेजमेंट अगर इन्वेस्टर को अच्छा लगेगा वो आराम से आपको जो चाहो वो अमाउंट दे देगा। इफ यू हैव नो एक्सपीरियंस थिंक अबाउट गेटिंग इट फर्स्ट, तो पहले एक्सपीरियंस लो। Choosing the right legal status needs careful thought. I would recommend sole trade or limited company. Partnership can be fraud when things go wrong, right? तो better है sole trader या limited company करो तो ज्यादा अच्छा है। Funding के लिए better to have 70% of something than 100% of nothing, right? Funding is very important, essential भी है, तो 70% मिल रहा है 100% nothing से, तो अच्छा है, right? People will not invest risk capital without a reasonable stack and return, मैंने अभी बताया ROI. Commercial lenders like to see you invest some real money into a project before they will lend. That ties you into the business and means you are less likely to give up if the going gets tough. तो आपको जम के रहना है ना, मतलब फेलियर को भी एक्सेप्ट करना। और मैंने बताया ना, ऑब्जर्व, reflect, make, observe, reflect, make. If you follow this, you can overcome all the problems.
Don't try and fund long-term purchases, right? With short-term money. Overdraft, credit card, ये सब के झमेले में मत पड़ो जब आप शुरू कर रहे हो. Because finally customers are king, right? Because they are fine, very expensive to find. Make sure you look after the ones you have. अगर आपके पास है ना, गांधी जी ने क्या है, कस्टमर क्या होते हैं, भगवान होते हैं. कस्टमर इज गॉड. कोई लिफलेट बनाने से, वेबसाइट बनाने से कुछ इनफ नहीं है. आपको पर्सनल टच रखना पड़ेगा, पर्सनल रिलेशंस बनाने पड़ेंगे, और कस्टमर ही आपके भगवान है. तो कस्टमर को संभाल के रखोगे उतना आपका ग्रोथ बढ़ेगा, राइट? सो जो कहते हैं ना, माउथ मार्केटिंग है यहाँ पे, राइट? तो रिमेंबर योर कस्टमर्स आर योर बेस्ट सेल्स ब्रोशर. और गवर्नमेंट का कैसे हेल्प ले सकते हो, तो अभी जैसे SSIP की बात करें हम, या गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के लिए, MSME के लिए. तो फॉलो, यूज दैट, उसका नॉलेज गेन करो. नॉलेज कंसोर्शियम है हमारा, वहां जाके बात करो, राइट? तो यू विल गेट लॉट मेनी इंफॉर्मेशन अबाउट गवर्नमेंट रिसोर्सेज. और दूसरी भी बहुत सारे इवेंट होती है, हैकाथॉन होते हैं बहुत सारे, जिसमें आप अपनी आइडियाज को दे सकते हो. वहां से आपको कोई ना कोई अवार्ड या कुछ इन्वेस्टर भी मिल सकता है, राइट? सो बिजनेस डिस्कशन एंड बैकग्राउंड में हम इतना ही बताएंगे. बिजनेस एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स इनकॉर्पोरेटिंग व्हाट यू आर सीकिंग बाय वे ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड अदर फंडिंग, राइट? और आपका हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट एंड एनी ट्रेडिंग टू डेट, और करंट और प्रपोज लीगल स्टेटस. तो ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं व्हेन यू डिस्क्राइब योर बिजनेस, राइट? देन अगेन प्रोडक्ट और सर्विस एंड मार्केटिंग. तो आपको आगे सारा मैंने बता दिया है USP के बारे में, तो आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल, यू जस्ट गो थ्रू इट. सबसे इंपॉर्टेंट है USP. आपके पास आपकी यूनिक सेल्स पॉइंट्स होने चाहिए. जो आगे मैंने ये लाइन वापस लिखी है यहाँ पे, बेटर, फास्टर, चीपर एंड नाइजर देन द कंपटीटर, देन यू आर द विनर, यू आर हैविंग योर ओन USP. ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स में क्या क्या होगा, तो डिलीवरी कैसे करोगे आप, आपका जो लॉजिस्टिक चैनल कैसे होगा, बिजनेस डेवलप कैसे करोगे, राइट? एंड कैन दो स्टाफ ऑफ द राइट क्वालिटी बी फाउंड एंड ट्रेंड. क्योंकि देखो आजकल सबसे इंपॉर्टेंट जॉब, सबको जॉब गिवर बनना है, राइट? मतलब जॉब करना नहीं है, करना है तो 1-2 साल में जंप करना है. तो ये सबसे बड़ा अभी इश्यू चल रहा है. तो इस पे भी बहुत सोचना पड़ेगा कि आप अपने इंसान को, अपने टीम मेंबर को अपने पास कैसे लॉन्ग टर्म तक रख पाओगे, उसकी स्ट्रेटेजी क्या बनाओगे, उसको खुश कैसे रखोगे, राइट? Already I discussed about financial informations. Monthly profit and loss, balance sheets and cash flows are usually required for 3 years. ये अगर आपको लोन बड़ी लेनी है या डेवलप करना है, उसके लिए रिक्वायरमेंट है, राइट? यस, जो मैं बात कर रहा था, SWOT एनालिसिस करना है आपको बार बार, वेदर इट इज आइडिया पार्ट और आपका प्रोटोटाइपिंग पार्ट और टेस्टिंग पार्ट, या आपका बिजनेस होने के बाद फीडबैक का पार्ट है. सारे के अंदर आपको क्या करना है, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट, जिसको कहते हैं SWOT एनालिसिस, वो आपको करते रहना है, राइट? तो इन लास्ट ये सबको इन्वॉल्व करके आपको एक अच्छा सा बिजनेस प्लान बनाना है, जिसमें सारे पैरामीटर्स जो मैंने आगे भी बताया 8 पॉइंट, वो सारे पैरामीटर का डिटेलिंग है, राइट? तो आपको अंदर इन्वॉल्व करना है. Now I am not going in detail of this case studies of successful business. आप अपने आसपास भी देख सकते हो कि कितने सारे successful businesses है, right? So my final messages are don't limit yourselves. देखो ये सारे कुछ फोटोग्राफ्स है, you can see here. ठंडा करने के लिए फैन है छोटा सा, right? You can see here all the pictures. ये you can see the raincoat in specific way. You can see the small umbrella. तो don't limit yourself. एंड जो मैंने बताया, आप अभी से पढ़ाई कर रहे हो या आगे बिजनेस करोगे, जस्ट फॉलो दिस. ये नरेंद्र मोदी जी भी बहुत बार कह चुके हैं, बहुत अच्छे लोगों ने बहुत बार कहा है, बहुत सारी बुक्स में दिया है कि प्रायोरिटी देनी है हमें आपके वर्क को. तो सबसे पहले चेक करो इंपॉर्टेंट अर्जेंट कौन सा है, इंपॉर्टेंट नॉट अर्जेंट कौन सा है, नॉट इंपॉर्टेंट अर्जेंट कौन सा है, एंड नॉट इंपॉर्टेंट नॉट अर्जेंट कौन सा है. देन व्हाट यू नीड टू डू, जो इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट है खुद कर लो, एक्ट. जो इंपॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है, उसको डेलीगेट करो, किसी को दे दो, आपके स्टाफ को, मींस पास इट और गिव टू विजनरी, राइट?
नॉट इम्पोर्टेंट बट अर्जेंट है, डेलीगेट पार्ट्स ऑफ टास्क, इसके अलग अलग पार्ट्स बनाओ, मतलब फाइलिंग करके उसको अलग अलग लोगों को दे दो। एंड जो इंपॉर्टेंट भी नहीं है, अर्जेंट भी नहीं है, प्लीज रिमूव इट, गो टू ट्रैश, delegate or wait for more suitable time. So dare to dream, be creative, do things which others refuse, no compromise between dream and capabilities. The new ones can start from the forgotten old ones. Stop and look around. ये मेरा मैसेज है आपके लिए, ट्रू एंटरप्रेन्योर, क्रिएटिव एंड इनोवेटिव एक्स के लिए, राइट? डेयर टू ड्रीम, क्योंकि देखो कुछ पुरानी चीजें वापस, आप देखो फैशन में काफी चीजें ऐसी है कि पुरानी चीजें बार बार आती है नए बन के, राइट? सो जस्ट लुक अराउंड, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट एंड मेक। एंड एज आई मेंशन अर्लियर कि मैं लास्ट में बताऊंगा कि आपको लाइफ में से कुछ चीजें निकालनी है, या तो दिमाग में जो चीजें है ना, कौन सी निकाल दी है। सो रिमूव 6 थिंग्स फ्रॉम योर लाइफ। गिल्ट निकाल दो, एक्सक्यूजेस निकाल दो, नेगेटिव पीपल को निकाल दो, एंग्जाइटी को निकाल दो, लोगों को खुशामद करना छोड़ दो, प्लीजिंग अदर्स, एंड नेगेटिव सेल्फ टॉक निकाल दो। अपने आप से नेगेटिव बातें नहीं करनी है। बी पॉजिटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव, बी पैशनेट, कोई भी चीज के लिए पैशनेट बनो। आपकी हॉबी, आपके आइडियाज, आपके इंटरेस्ट को आपका पैशन बनाओ और उसके पीछे पड़ जाओ, फिर देखो आपको कोई ना कोई अच्छा आइडिया मिल ही जाएगा। एंड वो कहते हैं ना, ऊपर वाला भी हेल्प करेगा, वो शाहरुख खान का अच्छा डायलॉग है ना, कायनात पूरी मदद करने आ जाएगी आपको, अगर आपके पास अच्छा थॉट है लोगों के हेल्प के लिए, किसी की अनमेट नीड को फुलफिल करने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू। Basically, thank you so much, sir. We start with idea and we end with the venture. Each and every part of the session we discuss, we covered over here. Hope our students are also like this session. From the behalf of Gujarat Arts and Science College, full staff member, I heartily thank you, sir. Thank you so much. Each and every student enjoy the session. You started with very basic part, that is what actually means by idea. How can you create the idea? आइडिया से किस हिसाब से आप प्रोटोटाइपिंग कर सकते हैं, प्रोटोटाइपिंग से नेक्स्ट उसको किस हिसाब से मॉडिफाई करना है, लास्ट में फाइनेंस तक, ईच एंड एवरी स्टेप यू कवर्ड इन दिस सेशन. Students are thoroughly enjoy this session. Hope we once again meet from the bottom of the heart of full SSIP cell and Gujarat Arts and Science College. Thank you once again, sir. Thank you so much. Thank you everyone. Thank you the team of Gujarat Arts and Science College and the SSIP Incubation Center. Thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you.